Good evening, everyone. Welcome to our webinar session on Flutter. My name is Dipmal Shaduka, and I'll be the host for tonight's session. Today, we have a very special guest speaker, Mr. Deeptanshu Mahesh, who is a Flutter developer and an intern at 5 Private Limited. Mr. Mahesh will be sharing his insights on Flutter and how it can be used to develop mobile applications. We will also have a Q&A session at the end of the presentation, so feel free to drop down questions and we will have it. And I guess that's enough for introduction part. I would like to hand over the stage to Mr. Diptanshu Mahesh. Diptanshu Mahesh, bhaiya, the stage is all yours. You have it. Hello, how is everyone? How are you all doing? Great, bhaiya, great. Great. Am I audible clearly? Yes, yeah, yes. Yes, you are audible. Okay, sure. So today, thank you for inviting me here. So I will be speaking on getting started with Flutter. So yeah, I will start without any further ado. Shall I start? Yes, bhaiya, of course. Okay, sure. So okay, so yeah. First of all, what is Flutter? Like many of us confuse Flutter as a language, right? So Flutter is not a language. Like for example, many of people confuse for example, Next.js or React.js as a language. Flutter is not a language. It's a development toolkit based on a language called Dart. Okay. So this definition is clearly taken from Google, as simple like cutting edge open source UI framework that empowers developers to build stunningly native compile applications. So yeah, so it's a basic simple toolkit for making mobile apps. Now, first of all, I would be telling you one thing about web and app dev. Most of you would be into web dev. Like majority of us start with web dev as it's comparatively easy than app dev. Like learning basic HTML, CSS, and JavaScript, you can pull up simple websites, and after that you can start with some framework like React and stuff. So with that, we can build up websites. So that's a very simple thing. But when it comes to app, many of the people step back, thinking app dev, that is something really complicated. And yeah, it was complicated up to a certain amount of time when it was purely into Java. So earlier the apps purely Java and Swift, those apps were really complicated. So now after this cross-platform thing came with Flutter and React Native and stuff, now this app development scene has gone a bit easier. Okay. So now I will be saying why Flutter. Okay. So you all know that there are multiple things and multiple available options for cross-platform app development, right? There's React Native, there is this Flutter. Nowadays, Kotlin multi-platform is also a thing. Using Kotlin multi-platform, you can make apps for different platforms, right? So why Flutter? Now, this is a good question. So Flutter, basically, the thing is, for example, let's suppose you are, making an app, simple app. Let's suppose a normal app or whatever we do, to-do app, as because that's the most easiest one and simplest one. For example, let's suppose you want to make a to-do app. Okay. So while making this the same thing with Flutter, Kotlin, and similar way with other stuff like React Native, you would find that with Flutter to make the app up and running, it would take a very less amount of line and much lesser amount of code to get to the same point. Whereas in Kotlin and other React Native, you will be setting up everything from scratch and it's a pretty complicated job. On the other hand, the platforms that Flutter support, like Android, iOS, Windows, Linux, variables, and also now the Fuchsia OS, all with a single code base. It's awesome. We are writing a single code and putting some responsiveness into it, and it's available for all devices, right? So, this is a very cross-platform development with ease. That's a very plus point for this. Yeah, React Native also provides this thing, and Kotlin multi-platform also provides this thing, but Flutter is, I guess, much more advanced into this thing. Okay, now I'll go to the next slide. And by the way, English is okay with you all, or should I speak in Bengali and Hindi?
Hello. Yes, yes, okay, okay. Not Yeah, I'm asking that, should I like also say in Bengali or Hindi, or is English is okay with everyone? Actually, anything works. Like it should be like anything. It can be English as well. Like most of the Yeah. common English things. as well. Okay, then I will then try with Hindi as well, because I think Hindi everyone understands Hindi, right? yes, sure, sure, sure. Okay, sure. सो अभी तो मैंने जो बोला दैट वाज लाइक फ्लटर क्यों यूज करते हैं हम लोग. ओके, सो बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन था ये कि मतलब बहुत इजीली हम लोग बना सकते हैं इससे एप्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए सब. तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं. सो व्हाई फ्लटर अगेन, द थिंग इज लॉट्स ऑफ प्री बिल्ड विजेट्स, जो व्हाट आई वाज सेइंग राइट नाउ. सो दिस प्री बिल्ड विजेट क्या होते हैं, व्हाट आर प्री बिल्ड विजेट्स? So let's suppose you want to make an app bar, like this thing is there, this app bar, like of course this is not an app bar, this is a visual representation of an app bar. So if you make the same thing with like Kotlin or React Native, like बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यार, बहुत कुछ लिखना पड़ेगा उसके लिए, इतना इजी नहीं है. यहाँ पे जस्ट यू राइट अ सिंपल सिंगल लाइन ऑफ कोड कॉल्ड ऐप ड्रॉअर, एक फंक्शन का नाम दे दिया, एंड ऐप ड्रॉअर अपीयर्स. नाउ यू माइट से कि बेसिकली अगर एवरीथिंग इज प्री बिल्ड, सो कस्टमाइजेशन कहाँ पे है? But no, you can customize everything from scratch. Like there is an infinite possibility of like customizing every UI element. Like Flutter, many people think कि सब कुछ तो pre-built आ रहा है, so यहाँ पे customization का option कहाँ पे है? So everything would be pre-built. So it's not like that. Basically, every widget is pretty much customizable, and if you don't like any particular widget, you can also make it from scratch as the other platforms do. So like for example, you want to write a text widget, just a text, you write a text and then you put the content. So it's as simple as that. And this widget thing, we will be coming back. I will be also showing some live code, an issue with that. So this is a very simple thing, like pre-built widgets मिल जाते हैं and you can start with. Whereas अगर let's suppose तुम React Native में if you want to do something like this simple navigation, एक screen से दूसरे screen में तुम्हें जाना है. So this thing, if you do with React Native, you need to do a lot of things like router set करना पड़ेगा, and it's pretty complicated there. यहाँ पे Flutter में it's just like a single line of code and that works pretty well. So yeah, next is this learning curve. This is a very important thing. Like React Native, Flutter, you can achieve the same amount of things with both of them. Like technically अगर देखा जाए तो I mean Flutter से whatever you can do the same thing with like nearly the same thing, and to be honest, sometimes even more with React Native and Kotlin. But the thing is the learning curve. Learning curve with Flutter is like much smoother, and like बहुत ही आराम से सीख सकते हो. मतलब even if you are a complete beginner, you can start with basic stuff and like easily like you can go with your own pace. Whereas React Native, it starts the 90 degree, like near to 90-degree curve, like all of a sudden everything just jumps on you. Like कुछ भी pre-built नहीं है, सब कुछ तुम्हें like depend करना पड़ता है. Like it's pretty complicated in that case. So with Flutter, like you can start with your own pace, and that's I guess a very plus point with this. But yeah, of course, like I would be honest, after a certain point of time they would become the same things. Like if you are good into like learning, so Flutter or React Native, after learning a certain amount of thing like this point I've shown, like after a certain point you can like pretty much use both of the things in the same way. You won't feel much difference, but that's it. Like starting, I mean starting may like if you don't get the best experience, many people like कि छोड़ दो यार, क्या है, like बहुत complicated हो रहा है. So that's what most people do. So yeah, Flutter is pretty much now easier to like do with. So yeah, another thing, this familiar development experience, this is another important thing. Like this is also a feature of React Native, because वहाँ पे तो like JavaScript और TypeScript से you make websites. So that might seem कि like React Native is much more familiar, but Flutter is also pretty much I mean familiar to you all, because अगर आपने Java या फिर JavaScript या TypeScript में कुछ काम किया हो, so you would find that the language is a pretty much, I mean, mixture of all these things. So it's pretty much easy to use. Another important feature that I guess I did not write here, yeah. So it's like the huge open source community. Like React Native में you have the npm like packages over there, but the amount of React Native packages are like much less than what Flutter packages are there. So if you go to the website called pub.dev, you would get an infinite amount of packages for Flutter, and trust me, they're too amazing. Like कुछ करना नहीं पड़ता, everything has already been done by someone else, and you can just
bring it to your code and start over with it. So is like this much like clear to you? Like, I mean, like, do you want any more points regarding why Flutter? Any questions regarding this? Any questions? Hello. Okay. Okay. So yeah. So okay, now let's come to a bit more technical part. Okay. So everything you see in Flutter is a widget. किसने कहा था पता नहीं. I don't know, but it is what it is. Like yeah. So Flutter में whatever you are seeing, so it's all a widget. Like basically, like I have shown an example over here. Like this entire mobile screen you are seeing, so like this background, like image and this everything is like whatever you can imagine, like everything is a widget over in Flutter. Like I've shown you, like every app begins with this thing called material app or Cupertine app. Like I will like, come to this later on. So that is also a widget. Then we go into the deeper of parts there. Scaffold, that is also a widget. Now you can see this thing like this image, like this water image is there. This is also an image. This is called a set image. Like this is the like widget name. This text, this is also a widget. This text is also a widget. This icon is also a widget. This button, this text, everything in Flutter that you can see is called a widget. I mean, and this widget approach is pretty much like basically you can say like component. You can compare it to like component approach like in other languages, but it's pretty awesome. Like, and everything becomes more organized. So yeah, this thing is about widgets. I will of course come to code and I will exactly show you widgets exactly kya hote hain. So yep. So let's go again. So now we come to a like type of widgets. Okay, like widget किस type के होते हैं? Stateful and stateless. Okay. Now let's like talk about what is state. So can anyone like tell me what do you think state is? Like I would also be like want this session to be interactive. So like, can anyone tell me what state is? I mean, you can turn on the mic and I guess say. I mean, everyone has the permission to open the mic, right? Okay, so I asked that I am talking about widgets, so I'm telling about the types of widget, right? I told you there are two types of widgets, that is stateful and stateless widgets. So like basically I wanted to ask that what do you mean by state? Like, do you all guys know what is state? I mean, anyone can say. It's not like you need to be correct. You can किसी भी language में बोल सकते हो किसी भी तरीके से. Ashish Gupta, no. It's not like that. Yeah, Abhiruk, that's exactly like something like that. But I would like someone to like clearly say some definition over here. Like mic on karke bolo, that would be better. And some more tries here. Okay, fine. I think I'll go ahead. So basically, state is something like, let's suppose you are making a app, normal app or website, anything. So state मान लो क्या होता है कि अगर what is the present condition of the screen or the UI or the widgets, like what is the condition present. So मान लो तुम एक app बना रहे हो, so you make a loading screen, right? So like loading screen में क्या लिखा होगा? Mainly a indicator रहेगा and text called loading or something like that. Okay. So now that this text is there now, this can also be called as a state. Okay. I mean, any particular condition, like what is the present scenario, like that is called a state. Now, as the name suggests, stateful and stateless widgets. So Flutter may, these are the two major types of widgets, that is stateful and stateless widgets. So what are these things? As the name suggests, stateful has a proper state and stateless does not have that much state, right? So now basically the thing is there is a state object that gets injected to the stateful widget, and whereas this state object is missing from the stateless widgets, right? Now, so basically stateful और stateless का यहाँ पे क्या काम है? तो मान लो तुम एक ऐप बना रहे हो जहाँ पे basically I told this example of loading screen. Okay,
सो लोडिंग स्क्रीन में डू यू थिंक देयर इज एनी स्टेट, मतलब यूजर कुछ करेगा तो स्क्रीन के ऊपर कुछ अपडेट होगा? आई डोंट थिंक देयर इज एनी रिक्वायरमेंट फॉर दैट. या समटाइम्स देयर इज, बट in general there is no requirement for, I guess, any state mostly whenever it comes to a loading screen or something like that. But let's suppose you are making a chat app. तो जब कुछ टेक्स्ट लिखोगे वहां पे, so the screen needs to update, right? That is state. This message, like the condition of the messages, that is a state, right? So that is where the stateful widgets come in. Okay, so that is a basic thing. I will also come to this in the code. Okay, so going forward, so this is a like a very, I mean, deep thing, widget and element tree. Flutter basically works like builds trees. Okay, so when you start an app, basically it starts with a widget and element tree. Whatever we write is a widget tree and Flutter develops is an element tree. So basically जो मैं बोल रहा थोड़ी देर पहले कि material apps, scaffolds, like these are the widget names. So this is how the tree goes on. Okay, and this all have a method called create element that creates an element which is used by the Flutter to render stuff. So I will come to this again later. So I guess now let's look at some live code. Till now is everything fine? Like am I clear to you all? Okay. So just give me another second. I'll just be right back. I'll share the screen. Yep. So I'll again share the entire screen. So to show the code, just a second. Let me know again when the screen is visible. The screen, a state concept. Okay, so I'll again talk about the state concept. So मान लो, अच्छा हिंदी तुम दोनों समझते हो? I mean, whoever told this state concept, Jamilur Rahman. Okay, so I'll be saying in Hindi only. So मान लो कि देखिए, let's suppose कि you are making an app. Okay, app या app छोड़ दो, like let's suppose simple website only. Let's take an example कि आप कोई app open कर रहे हैं. Okay, so generally screen पे क्या देखते हैं? There is a thing called splash screen, right? Splash screen में क्या होता है? मान लीजिए ऐप का लोगो रहता है and there is a text called loading. Okay, so you can say this like क्या हो रहा है? स्टैटिक कंटेंट है, राइट? एक स्टैटिक कंटेंट है, ये कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब तुम्हें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये लोडिंग जो दिखा रहा है सो दैट नीड्स टू चेंज समहाउ, राइट? ऐसा तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना कि मतलब जो लोडिंग आइकन है वो कुछ तुम्हें बेस्ड ऑन सम एक्शन तुम्हें कुछ चेंज करना है, राइट? ऐसा तो नहीं है ना. सो इन दैट केस यू कैन से दिस इज अ स्टेटलेस. ओके, नाउ इफ वी लाइक लेट्स सपोज तुम कोई चैट ऐप बना रहे हो. ओके, सो अगर चैट ऐप बना रहे हो तो वहां पे क्या हो रहा है, मतलब तुम कुछ टाइप कर रहे हो एंड बेस्ड ऑन दैट दैट्स एंटायर यूआई इज गेटिंग अपडेटेड ना. सो दैट यू कैन से एज अ स्टेट. ओके, आई विल इवन एक्सप्लेनिंग इन मोर सिंपलर टर्म्स जो हर कोई लेता है, दैट इज अ काउंटर. ओके, काउंटर ऐप तो लाइक सभी सभी यूज करते हो. सो आई विल जस्ट वेट अ सेकंड, आई विल शेयर द स्क्रीन ड्रॉ. Okay, so like basically let's suppose very simple example like a counter app. Okay, counter app बना रहे हो तुम. Okay, so let's suppose value of the count is 0. Okay, so अगर count का value 0 है अभी and there is a let's suppose button जिस पे तुम press करोगे तो इस पे होगा तो increase होगा, and there is another button like this जिस पे click करोगे तो decrease होगा. Okay, now this condition like this 0, so this 0 is you can call it as a state. अगर if you click on the increase तो ये 0 change होके तुम्हारा जो 1 हो रहा है you can call it a state change. Okay, like तुमने change किया कुछ and this thing is updating. So this updating this content is basically this is called a state. मतलब state अगर हिंदी भाषा में बोले तो you can say like present में क्या scenario है, मतलब क्या उस चीज का हालचाल क्या है, मतलब क्या है एक्चुअली में. ठीक है, so that is what a state is, मतलब anything that you can change, yeah, you can say like that only. So is the state thing clear? What state equal to sthiti?
Okay. Anyways, so yep. So I'll go ahead. So let's start with some code proper. Okay. So when I will not go with how to like install Flutter, okay, like that is like a pretty big thing, and I think that will take a lot of time. And better if you need, so you can tell me, but I would go with like how the project structure and everything is. So Flutter के लिए very simple command Flutter create, and for example let's suppose I ये बना ही रहा था already, so this I just press this enter and this thing builds up, and it's already there. So I'll go into this directory and yep, and open this in VS Code. Okay. So I'll basically, okay, by the way, the screen is visible, na? Yes. Uh, okay, sure. So yeah, so basically like you can see the screen. I want to like focus on this part, this Explorer part, okay? Because basically I want to like talk about the folder structure. If you see from like the first time, this would seem pretty complicated. I mean, देखने में लगेगा इतने सारे फोल्डर्स है, इतना कुछ है, मतलब क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है. बस बेसिकली लाइक तुम्हें करना काम पूरे में नहीं है. दिस लाइक फॉर एग्जांपल दिस डार्ट, इसमें कुछ करना ही नहीं है. लाइक देयर इज नथिंग टू डू विद दिस डार्ट पैड का कुछ कॉन्फ़िगरेशन रहता है, that is got nothing to do with this idea. This is basically for IntelliJ. If you write basically use IntelliJ idea for your IDE, you would be using this folder then. And then if we go to this test folder, ये widget testing के लिए होता है, which is also generally of not any use for beginners. I mean, बाद में if you go to pretty advanced Flutter, you would use this thing. And whatever we will basically using is this some mainly we will write the entire code and everything would be inside this lib folder. This you can see this lib folder, everything would be done inside this lib folder. Okay, now and this pubspec.yaml, I mean YAML files, I guess you all know a bit. This contains like you can call it as like somehow like I mean package.json we use now in web development. So you can call it something like the package.json file. Like it contains everything, like all the packages you are using over here and all the basically packages only, like and the details of the project, right? Whatever the name, description. In case you want to upload this to the pub.dev, in that case you will need these things anyways. So and baki to there is nothing, I will talk about everything else. Yeah. So yeah, so now if we come to this thing, basically I will go with the not very much required folders right now, but yeah, you will be needing them when you publish your apps or get to something specific. So there is this folder called Android. Okay, so ये क्या होता है? I mean Flutter जो मैंने बोला, like Flutter you are writing a Dart code, so you will write code in Dart, and basically क्या होता है कि ये basic चीज तुम्हारा कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा नेटिव प्लेटफॉर्म कोड में, राइट? सो जो ये चीज होता है, सो ये कैसे होता है, मतलब ऐसे ऐसे तो मतलब योर डिवाइस वो तो थोड़ी ना डार्ट समझता है, कंपाइल करना पड़ता है ना. सो दिस एंड्रॉइड इज द फोल्डर दैट इज यूज्ड फॉर कंपाइलिंग दिस थिंग्स टू एंड्रॉइड. ओके, सो यहाँ पे लेट्स सपोज यू वांट टू यूज सम एंड्रॉइड स्पेसिफिक थिंग्स. मान लो इफ somebody has worked with Kotlin, they would be like very much familiar with this thing called Android manifest.xml. I mean, ये जो लोग अभी ऐप डेव में स्टार्ट कर रहे हैं, this would look very alien to them right now. But yeah, so this thing is like you can call it like basically जो मान लो तुम्हें कुछ particular प्लेटफॉर्म वाइज कुछ फीचर्स यूज करने हैं, तो यू वुड बी गोइंग टू दीज फोल्डर्स. ओके, मान लो कुछ ऐप पब्लिश कर रहे हो, तब यहाँ पे काम होगा तुम्हारा. सेम विद दिस iOS फोल्डर, दिस वुड बी यूज्ड इफ यू वांट टू use some iOS specific features, and this Linux, Mac OS and web. Now I would say one thing by the way, like those who are thinking कि Flutter से तो वेबसाइट भी बन जाते हैं, so why not use it properly for websites. But I would say one thing ki Flutter is not that good in making websites. So if you're planning to do that, I won't discourage you actually, but I would say ki like kuch और maybe साल wait कर जाओ. So after that you can use it for web. Till now the Android and iOS, Mac OS, Linux, these are just amazing, amazing. Okay. So now get to the main thing, like this lib. इस लिब फोल्डर के अंदर वट एवर यू राइट इन लाइक कोड, सब कुछ इसके अंदर रहेगा. मान लो इफ यू आर मेकिंग एन असेट, अगर कोई असेट्स बना रहे हैं तुम इसके अंदर, वो भी तुम यहाँ पे ऐसे असेट्स डाल सकते हो.
सो लाइक या असेट्स डाल सकते हो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे तुम्हें कंपोनेंट का कोई फोल्डर बनाना है, यू कैन पुट दैट एज वेल। मान लीजिए यहाँ पे कोई सर्विसेज नाम का कुछ बनाना है, सो दैट टू यू कैन पुट, मॉडल्स डालना है, एवरीथिंग यू कैन लाइक यू नीड टू पुट ओवर हियर, ओके। हाँ, technically if you put the files asset file outside this lib folder, that too works, but I mean it's a good practice to keep every like code whatever you're writing inside this lib folder, okay. So now up till this much, is everything clear with you all? I mean say with voice, I guess, because I'm not seeing the screen right now. Yes, yes. Okay, so now let's get a bit to the code, okay. By the way, like quick questions, like is it going bouncer or am I going too fast? Yeah, you raise the hand, so you can tell. Hi, good evening. Am I audible? Yeah, your voice is cracking a bit, but you can say. Yeah, you are demonstrating pretty well. Question is little different. Like you are using VS Code, so is it possible that you can Your voice use is any cracking, online? I guess, completely. Can you be a So bit can I more? write in the chat? Yeah, you can try talking, and if that does not work again, you can write in the chat then. Okay, I was just asking ki VS Code. We are using VS Code, so is it possible to use any other online compiler to Yeah, no, not online compiler. I mean, see, technically, are you saying something? Shall I go? I mean, tell. Go ahead. yeah, yeah. Oh, yeah. So, see, like technically, online compiler, I mean, it's not a very good idea because, see, like while making, I mean, writing code in Flutter, like if you use an online compiler, the thing is like basically, like if I show you this thing, so I am like running an emulator over here, okay. So if you do this thing in like a web, like technically you would need something like cloud, because the thing is, if I show the task manager right now, wait a second, I like wanted to show you one thing. Yeah, if I like show the task manager, till now, see, like this Java thing is working. I mean, it's the app is not yet running. If I start the app, I mean, like this thing takes up a huge amount of RAM, okay. I will demonstrate that in a while. So if you do that in an online like thing, it would be pretty much costly for that case. And the thing is, I mean, as because the folder structure, like in case of websites, you don't have that much heavy amount of folder structure over there. Like let's say you have gone to websites like for example, where you get online code for anything, so code playground or something like that. There are places for that, but in case of Flutter, one thing you had like this thing, Dartpad is there for that is not working. Dartpad is there if you want to, like, let's suppose try writing Dart language code. For that, this online thing is there, but again, like, this is not for Flutter, okay. Flutter basically, like, whatever you find online, you might get the, I told you now, the web part. Like Flutter is also available on web, so that type of compiler you can get in web. But I don't think it is a good way if you want to like make Android apps or something like that. If you use like Flutter for like online compiler. And like yeah, other IDEs work pretty much, like any IDE would work. Like if you use Android Studio, that is like many people use that, so that is available, you can use that. And also like Vim, many people use Vim, so everything works. The IDE is not the thing. But if you talk about the online compiler, I would say that's till now, I mean, I know for, like I said, yeah, you can do one thing, like you can use cloud computing, and like let's suppose you run a computer remotely, and through that you can use. But I don't see the point in doing that if you have a proper computer. Yeah, so does that answer your doubt? Yeah, that can also be an option, I guess. Replit, I've not exactly explored on that, but I won't be like promoting any like online compilers for Flutter, because once you like start writing the code, you would yourself understand the developer experience. That would be kind of ruined when you will be using the Flutter part.
So like who asked, like Jamilur, like is it okay? Did you understand? Yeah, I got it. Actually, recently we are using Google Colab for email project. So, is it possible to use Colab as well for I think Google Cloud might work. I have not used it, but I believe it works. So like see, basically the issue with this the online part with Flutter is like Flutter takes up a lot of RAM actually. Okay, so if you can provide that much, so you can use that thing. Code Sandbox, I guess Code Sandbox provides the web version of the Flutter. I have never used that, but I guess the web version will work in Code Sandbox. And for Jamilur, like what you said, like if you have a like very high amount of like RAM available there, and in that case, I guess you can use the online thing. But still, I would say ki it's not a very good idea to use this like app development on like cloud or something like that. That is, I guess, not a very big thing till now. But yeah, I mean, like it's possible to use. I guess you can use that. So is that everything okay with you? Did you get it, Jamilu? I mean. Yeah, I got it. Yeah, yeah. If it has the RAM and like it supports, I mean, native this languages, it might work. It can work. So okay, then I guess it can work, but like I won't be like exactly saying on this because I have never used this Google Colab for like Flutter. I mean, I never saw the point in doing this because like if you have a proper like laptop or like desktop with at least something decent RAM or like 8 GB of RAM at least, so Flutter works pretty well. Like post the code on GitHub and like it works pretty well. Yep. So that's the thing with this online part. Okay. So now again, let's get back to the code part. Okay, like every language, जावा हो कि सी प्लस प्लस कुछ भी हो, this main वर्ड में हर जगह. So flutter also, like flutter not, I would be saying कि dart basically, because यहाँ पे dart की बात हो रही है. So dart basically starts from this again this method called void main. Okay, void main के अंदर there is this function called run app, जिसके अंदर तुम ऐप प्रोवाइड करते हो, and this is how where the widget tree starts building up, like this my app. Like you can see this I mean like exact syntax won't be very clear to you right now, but I'm trying to explain as much as possible. So you can see by the name itself, it's pretty much like self-explanatory. This my app, this is a stateless widget, clearly written. So I was talking about the widgets now. So अगर तुम if you go with the hierarchy, देखो पहले main function आया, उसके अंदर run app आया, उसके अंदर this my app which is a stateless widget, उसके अंदर if you go this material app, and उसके अंदर this widget tree goes on. Like if I tell here, so yeah, सबसे पहले like this मेन फंक्शन तो सबसे पहले कॉल हुआ, सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद तुम्हारा दिस रन ऐप, सो रन ऐप आया, उसके बाद तुम्हारा इफ यू गो फर्दर, आई शोड यू दिस माई ऐप बेसिकली अ नेम, बट यू कैन कंसिडर एनीथिंग, कुछ भी नाम हो सकता है, वो माई ऐप नाम है उसका, तो आई विल नेम हियर माई ऐप ओनली. सो ये है, ये एक बेसिकली स्टेटलेस विजेट है. ओके, स्टेटलेस विजेट है. सो उसके बाद क्या है, उसके बाद और भी अगर डीप में जाए तो इट कीप्स ऑन गोइंग अप. ओके, सो देखो एक ट्री बनता जा रहा है ना, मतलब एक के बाद बेसिकली, आई मीन ट्री अभी दिख नहीं रहा, बट टेक्निकली ट्री ही बनने वाला है ये थोड़ी देर बाद, मैं दिखाता हूँ कैसे. सो ट्री कीप्स फॉर्मिंग, कि मतलब मेन से रन ऐप कॉल हुआ, रन ऐप से माई ऐप कॉल हुआ, माई ऐप से तुम्हारा मटीरियल ऐप कॉल हुआ, उसके बाद लाइक द विजेट्स वुड बी कॉल्ड, एक के बाद एक स्कैफोल्ड आएगा, फिर ऐप बार आएगा, ये सब आता रहेगा. So this is how like this I was talking about the widget tree. So हम फ्लटर में जो कोड लिखते हैं ना, बेसिकली वी आर मेकिंग अ विजेट ट्री ओनली, कि एक के बाद एक के बाद एक माउंट होता रहेगा, कि बेसिकली शुरुआत में ये आएगा, उसके बाद वो आएगा, तो वहीं से ट्री बनेगा. ट्री कहाँ पे बनेगा, मान लो कि स्क्रीन के ऊपर 4 टेक्स्ट विजेट्स है, तो वहां पे जैसे 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, वहीं पे ट्री बन जाएगा तुम्हारा. अभी लग रहा हो कि एक के बाद एक आ रहा है, तो ये काइंड ऑफ ट्री नहीं हो रहा. सो या, so I guess this basic thing with Flutter is clear. I mean, the widget tree concept is clear. I mean, with you all, did you understand कि widget tree क्या होता है? I mean, in basic, I've not explained it very deep, but is widget tree? Yeah, tell. I guess okay.
Okay, okay. So this widget tree is there. So widget tree और भी क्लियर में मैं बोलूँ तो क्या होता है कि मान लो अगर तुम अगर इवन और भी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो फ्लटर में जैसे हम मैं दिखाया ना ये चीज की यहाँ पे एक ट्री बनता जा रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे माई ऐप आया, इसके ऊपर मतलब कुछ और आता रहेगा, देट विल कीप ऑन कमिंग कि मतलब यहाँ पे कुछ और आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे करके चलता ही रहेगा कि मतलब एक के बाद एक के बाद एक मतलब ट्री बनता जाएगा कि मतलब तुम विजिट लिखते जा रहे हो। पहले ऐसे मान लो कि जैसे हम वेबसाइट में जाते हैं, पहले होम पेज रहता है, होम पेज के अंदर कुछ और पेज रहता है, तो मतलब कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ, मतलब होम पेज के अंदर कुछ टेक्स्ट है, उसके अंदर कुछ और है, तो अंदर जाते रहते हैं ना, वी कैन कंसिडर इट लाइक दैट ओनली, मतलब एग्जैक्टली वो चीज नहीं है बट या यू कैन कंसिडर इट लाइक वैसा ही कि मतलब एक पहले मेन ऐप आया, उसके बाद रन ऐप आया, माई ऐप आया, so उसके बाद मटीरियल ऐप आएगा, स्कैफोल्ड आएगा, ऐसे विजेट जाते रहेंगे एक के बाद एक के बाद एक। सो या getting back to the code, flutter may I told you that there is a thing called stateless widget and stateful widget. So जैसे यहाँ पे एक है, if I run this app by the way, ये बेसिकली एक बॉयलर प्लेट कोड है जो फ्लटर हमेशा देता है, मतलब यू कैन ऑल्सो लाइक रिमूव दिस थिंग, कोई जरूरत नहीं होती इस बॉयलर प्लेट कोड की, यू कैन कम्प्लीटली राइट योर ओन कोड, बट जैसे आई मीन रिएक्ट या फिर नॉर्मली तुम्हारे नेक्स्ट जेएस में मिलता है वैसा ही ये भी चीज मान लो। सो आई विल जस्ट रन दिस थिंग, मेरा एमुलेटर यहाँ पे रनिंग है, so I just click on F5 and we start with this thing. So wait a second, just give it a time. और फ्लटर में एक और इम्पोर्टेंट फीचर है जो रिएक्ट नेटिव में भी एक्चुअली है, सो दैट इज आई विल शो यू राइट नाउ, दैट इज दिस लाइव रीलोड, हॉट रीलोड एंड हॉट रीस्टार्ट। सो मतलब अगर तुम कुछ चेंज करोगे ना मतलब फ्लटर कोड में, सो टेक्निकली लाइक यू डोंट हैव टू लाइक एंटायरली राइट द एंटायर कोड अगेन एंड अगेन, बट या फ्लटर में एक दिक्कत है कि मान लो कुछ छोटा दिक्कत इशू हो जाए, ऐसा आ जाएगा कि जैसे यहाँ पे एरर आ रहा है, पैरामीटर फॉर्मेट नॉट करेक्ट। सो ये एरर मतलब टेक्निकली ऐप रन कर जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा, बट कुछ छोटा इशू आ जाएगा तो ये आ जाता है। जैसे देखो ऐप इज वर्किंग परफेक्टली। सो या देख लो यहाँ पे ऐसे ये बेसिक टेम्पलेट जो कोड दे रहा है फ्लटर, तो देखो ये आ गया। तो मुझे बताओ कि ये ऐप रन करने में मुझे कितना टाइम लगा, मतलब मुझे कितना कोड लिखना पड़ा। लिटरली एवरीथिंग इज सेट अप एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ कोड दैट इज रिक्वायर्ड टू लाइक गेट एन ऐप रनिंग, राइट। यहाँ पे ये बेसिक काउंटर ऐप है जहाँ पे अपडेट हो रहा है। एंड बाय द वे हुआ जो स्टेट के बारे में पूछ रहे थे, ये देखो अपडेट हो रहा है ना, मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये अपडेट हो रहा है। यू कैन कॉल दिस एज द स्टेट, मतलब जो 3 है अभी, 3 एक स्टेट है इस काउंटर का, अगर इसको चेंज करें तो 4 हुआ, ये स्टेट अपडेट हुआ। सो दिस इज व्हाट अ स्टेट इज, बट या आई मीन या दिस थिंग इज फॉर स्टेट। तो ओके, सो नाउ लेट्स डू दिस थिंग। या अब मैं बोल रहा था कि दिस थिंग सपोर्ट्स हॉट रीलोड एंड हॉट रीस्टार्ट। ओके, सो मान लो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट देख रहे हो ना, ये पुश दिस बटन दिस मेनी टाइम्स, यू कैन सी दिस टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन एज वेल, राइट। सो अगर मैं कुछ चेंज करूँ कि हेलो, तो मैं कंट्रोल सेव करूंगा, सी ऑटोमेटिक मेरा यहाँ पे अपडेट हो गया, मुझे कुछ रीबिल्ड वगैरह करना नहीं पड़ा, जो कॉटलिन या फिर जावा में बार हर बार लाइक कंपाइल करना पड़ेगा, एंड दैट टेक्स प्रीटी मच लॉट ऑफ टाइम। दिस हॉट रीलोड एंड हॉट रीस्टार्ट फंक्शन इज लाइक pretty much amazing. So okay, now I will do one thing, I will just clear up this entire code and ये भी टाइटल भी हटा देता हूँ, कुछ भी नहीं चाहिए हमें टाइटल। सो यप, सो मैं जो दिखा है यहाँ पे, तो मैं इस लिब में ही एक और फोल्डर बना रहा हूँ कॉल्ड स्क्रीन्स। ओके, स्क्रीन्स के अंदर आई मीन आई टोल्ड ना कि मुझे हमेशा लाइक वी शुड लाइक मेक श्योर द थिंग्स आर प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड। सो स्क्रीन के अंदर लेट्स सपोज आई मेक अ फाइल कॉल्ड होम पेज डॉट डाट। ओके, सो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ये बेसिकली यहाँ पे गलत कोड है, अभी मैं ये ठीक करता हूँ। तो इफ वी गो हियर, तो यहाँ पे मैं तुम्हें क्या बोला कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विजेट, एक है स्टेटफुल और स्टेटलेस। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा चीज करने वाले हैं, तो स्टेटलेस ही यूज करते हैं। बाय द वे दोज हु विल बी यूजिंग फ्लटर, सो मैं एक और चीज बोल देता हूँ, यू इफ यू यूज वीएस कोड ना, देयर आर लाइक सम ऑसम एक्सटेंशंस। सो इफ यू सर्च विद फ्लटर, you will get an extension like this thing, this flutter. This extension you need to make sure you are installing this extension. Okay, so this extension like अभी मैं यहाँ पे stl लिख रहा हूँ, stateless या फिर stateful widget बन जाएगा stls। so ये देखो flutter stateless widget मुझे मिल गया stls में। तो अगर मैं इसको एंटर करूंगा, मुझे बेसिक बॉयलर प्लेट कोड मिल गया यहाँ पे, मुझे बैठ के ये सब क्लास एक्सटेंस वगैरह लिखना नहीं पड़ेगा। सो आई एम नेमिंग दिस थिंग होम पेज
Okay. Currently this code might seem a bit complicated to you all, but trust me, a bit थोड़ा easy करने की कोशिश करता हूँ मैं. So मैं यहाँ पे मेरा ये कोड कॉल कर लेता हूँ होम पेज. सो अभी देखो ये पूरा क्लीन हो गया अब. सो अब मैं थोड़ा फिर से वही पार्ट पे जाता हूँ कि क्या हुआ यहाँ पे. मेन ऐप मेन था, मेन फंक्शन के अंदर तुम्हारा रन ऐप आया, रन ऐप के अंदर तुम्हारा माई ऐप आया. दिस ऐप माई ऐप इज व्हाट, स्टेटलेस विजेट. दिस स्टेटलेस विजेट के अंदर एक होम नाम का फील्ड है which contains this widget called home page. तो if we go back to here, यहाँ पे अगर फिर से जाए तो हम क्या देखें, माई ऐप, मेन ऐप से रन ऐप आया, रन ऐप से माई ऐप आया. इसके बाद जैसे हमने अभी यहाँ पे बनाया क्या, होम पेज. ओके, सो होम पेज इज अनदर विजेट इनसाइड दिस माई ऐप. सो यू कैन कॉल दिस लाइक, देखो विजेट ट्री बनता जा रहा है. होम पेज है, होम पेज के अंदर मैंने क्या बनाया, एक यहाँ पे स्कैफोल्ड नाम का विजेट बनाया. अब स्कैफोल्ड क्या होता है, स्कैफोल्ड होता है जो बेसिकली तुम देख रहे हो ना, व्हाइट एंटायर दिस कैनवस. यू कैन से इट एज अ कैनवस. इस कैनवस के ऊपर तुम काम करोगे. अब कैनवस बोले तो एचटीएमएल कैनवस के साथ कंपेयर मत कर लेना, वो अलग चीज होती है. बट या कैनवस के साथ लाइक यू कैन कंपेयर लाइक एन एम्प्टी कैनवस ओवर हियर. तो या दैट इज द स्कैफोल्ड. ओके, सो अब मैं यहाँ फिर से जाता हूँ यहाँ पे, आफ्टर लाइक जस्ट अ सेकंड, erase this part. Yeah, so if I go in deep here, यहाँ पे फिर से मैंने क्या बनाया, एक स्कैफोल्ड. यहाँ पे एक स्कैफोल्ड है. Yep. दिस इज बेसिकली लाइक द ट्री बनता जा रहा है. देखो मेन है, रन ऐप है, माई ऐप है, होम पेज है, उसके अंदर मैंने स्कैफोल्ड नाम का विजेट कॉल किया. ओके, सो देखो अब बेसिकली स्कैफोल्ड क्या होता है कि मतलब जो मैंने बोला ना कैनवस है, इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है. देखो मतलब तुम्हें कोई ऐप बार चाहिए, जो मैं बोल रहा था थोड़ी देर पहले कि फ्लटर बेसिकली तुम लिखोगे इतना कि ऐप बार, बस इतना लिखोगे तुम्हें लाइक, एक सेकेंड कौन सा हटा देता हूँ, यप कॉन्स्ट नहीं है ये. सो देखो ऐप बार लिखोगे एंड लाइक इफ यू पुट एनीथिंग इनसाइड दिस ऐप बार, लाइक लेट्स सपोज टाइटल नाम का फील्ड है यहाँ पे. I'll just come to this thing in a second. Like hello. Yep. देखो ये ऐप बार मुझे यहाँ पे मिल गया. I mean, दिखने में लग रहा होगा कि ये ऐसा नहीं कि बिकॉज मैंने डिजाइन वगैरह कुछ किया नहीं. मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ तो ये दिख जाएगा कैसे ना ऐप बार. मान लो कुछ भी कलर दे देता हूँ कि ब्लू एक्सेंट. यप, देख लो यहाँ पे. आई मीन दिस मच कोड, इज इट टू मच? आई मीन लाइक क्या ये बहुत ज्यादा कोड है कि मैंने लिखा कि ऐप बार बनाने के लिए? एंड इट लुक्स प्रीटी डिसेंट. लाइक ऐसा कुछ नहीं कि बहुत गंदा दिख रहा है, भद्दा दिख रहा है, ऐसा भी नहीं है. और इसको मैं ऐसा कर लूँ लाइक एज सिंपल एज दैट, इतने से कोड में मेरा एक ऐप बार बन गया यहाँ पे. सो इजंट दिस लाइक टू अमेजिंग? सो यहाँ पे अब मैं एक और चीज दिखाता हूँ. जैसे मैं बोला यहाँ पे स्कैफोल्ड मैंने बनाया, स्कैफोल्ड के अंदर क्या आया मेरा, बेसिकली स्कैफोल्ड के अंदर अब यहाँ से मेरा ट्री बनना शुरू होगा. स्कैफोल्ड के अंदर मेरा बेसिकली ऐसे मैंने बनाया ये, एक सेकेंड, ऐप बार. सो स्कैफोल्ड के अंदर मेरा ऐप बार एक विजेट बन गया. इस ऐप बार के अंदर अब क्या रहेगा, ऐप बार के अंदर वैसे मैंने प्रॉपर्टी डाली, टाइटल डाला एक. तो टाइटल इज अनदर लाइक थिंग. लाइक टाइटल के अंदर एक और टाइटल नाम का एक प्रॉपर्टी है. सो टाइटल के अंदर फिर से मैंने क्या लिखा यहाँ पे, तुम्हारा टेक्स्ट. टेक्स्ट इज ऑल्सो विजेट. सो मैं इतनी बार ये बोल के क्या एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि बेसिकली देखो लाइक जो भी तुम्हें दिख रहा है ना, सब कुछ एक विजेट है, टेक्स्ट विजेट है. सो लाइक दिखता जा रहा है कि मतलब देखो मैंने यहाँ पे मेन कॉल किया, रन ऐप कॉल किया, माई ऐप कॉल किया, होम पेज कॉल किया, उसके अंदर स्कैफोल्ड आया, स्कैफोल्ड के अंदर तुम्हारा ऐप बार आया, ऐप बार के अंदर टाइटल आया, टाइटल के अंदर टेक्स्ट आया. सो लाइक दिखने में लग रहा है बहुत कुछ हो गया, बट इट्स एज सिंपल एज दैट. देखो कितना सा कोड लिखना पड़ा. आई मीन बस इतने से कोड पे तुम्हारा एक प्रिटी मच सिंपल एक ऐप बन गया, राइट? सो isn't this awesome? Like so simple, like, right? So till this much, like, is it I mean clear to you all? Okay. I mean like is this thing looking too complicated for you all? I mean voice में भी बोल सकते हो if you want. Complicated लग रहा है क्या, मतलब yeah. Okay. Cool, cool, cool. I don't think that's like a really complicated thing. It's I guess pretty simple. Okay. So yeah. So देखो यहाँ पे एक simple as that, इतने से ही मेरा एक टेक्स्ट विजेट आ गया और ऐप बार भी बन गया मेरा. अब मैं क्या करूंगा, मान लो स्क्रीन के अंदर कुछ लिखना है तो देयर इज दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड, एक सेकंड, सॉरी, ऐप बार के बाहर मैं एक लिखूंगा बॉडी. अब इस बॉडी के अंदर तुम्हारा कंप्लीट चीज रहेगा, मतलब जो तुम्हें स्क्रीन में दिखने वाला है वो रहेगा.
मान लो यहाँ पे देयर इज दिस विजेट कॉल्ड लिस्ट व्यू. अब विजेट के बारे में लाइक पर्टिकुलर ऑफ कोर्स तुम पढ़ते पढ़ते यू विल बी लर्निंग दीज थिंग्स. लाइक मान लो यहाँ पे एक सेंटर नाम का कुछ, या फिर इसे हटाओ, मैं एक और भी सिंपल काम कर देता हूँ. बिल्कुल सिंपल विजेट, सेंटर विजेट. सेंटर विजेट का काम क्या है? बेसिकली जो दिख रहा है बीच में सेंटर में ला देगा. सो यहाँ पे मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड. सो या देख लो, एज सिंपल एज दैट. मैंने बस कितना कोड लिखा है कि यहाँ पे स्क्रीन में लिखने के लिए हेलो वर्ल्ड इतना सा लिखा और मेरा आ गया, राइट. सो दिस थिंग लाइक देखो बहुत ही सिंपली हो रहा है ना काम. मतलब यहाँ पे एक लाइन में कोड लिख रहा हूँ और मेरा आउटपुट आ रहा है. सो इट इज एज सिंपल एज दैट. अब अगर मैं फिर से इस चीज पे जाऊं यहाँ पे, सो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे बेसिकली आपका क्या आया? बॉडी आया. बॉडी के अंदर मैंने क्या लिखा? बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पे सेंटर नाम का एक विजेट बनाया. सॉरी, सेंटर नाम का एक विजेट बनाया. सेंटर के अंदर मैंने फिर से एक और विजेट लिखा कॉल्ड टेक्स्ट विजेट. सो नाउ कैन यू सी कि एक ट्री बनती जा रही है यहाँ पे. मतलब वेट अ सेकंड, हाँ या. सो आई गेस यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग कि एक ट्री बनता जा रहा है यहाँ से, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक. अब यहाँ पे जाके डिवाइड हो रहा जा रहा है. यहाँ पे मान लो सेंटर के अंदर मैं कुछ और कर दूं. मान लो यहाँ पे सेंटर के अंदर मैं कुछ और कॉम्प्लिकेटेड सा कर लूं थोड़ा सा. मतलब कॉलम बना दूं. यहाँ पे एक टेक्स्ट विजेट है कॉल्ड हेलो वर्ल्ड, और एक टेक्स्ट विजेट है तुम्हारा लाइक ये कुछ भी लिख दिया मैंने यू. सो ये ऊपर चला गया, इसको मैं बीच में कर देता हूँ. सेंटर या. सो या, सो मतलब देख लो यहाँ पे एक और मैंने यहाँ पे विजेट बना दिया. तो कॉम्प्लिकेट से थोड़ा सा बड़ा भी दे तो क्या होगा कि सेंटर के अंदर मेरा बेसिकली क्या था? कॉलम नाम का विजेट आया. इस कॉलम को फिर से मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. यहाँ पे एक में मैंने दो बेसिकली दो टेक्स्ट लिखे मैंने. सो आई गेस व्हाट आई एम एम्फसाइजिंग ऑन लाइक दिस ट्री, राइट. आई गेस दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल कि एक ट्री बनता जा रहा है यहाँ पे मेरा ना. तो एक पूरा मतलब देखो ट्री लाइक एक के बाद एक कॉल होता जा रहा है. सो इज द विजेट ट्री कंसेप्ट लाइक क्लियर टू यू ऑल? मतलब थोड़ा क्लियर हो रहा है क्या होता है विजेट ट्री? आई एम फोकसिंग ऑन दिस बिकॉज ये एक फ्लटर का बहुत ही मेजर लाइक कंपोनेंट है दिस, लाइक ये चीज है. सो या आई गेस गो अहेड. सो या, सो बेसिकली इतना तो अभी बोल दिया. ओके, नाउ देखो अभी जैसे हमारा जो स्क्रीन है, तो कुछ अपडेट क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या कुछ काम वाम हो रहा है? अगर मान लो मैं चाहूँ कि कुछ हो तो नहीं रहा ना यहाँ पे कि मान लो यहाँ पे कुछ अपडेट हो रहा है. तो मैंने क्या कॉल किया था? स्टेटलेस विजेट कॉल किया था. तो देखो लाइक जस्ट सेकंड, या. सो या दिस इज स्टेटलेस विजेट. तो स्टेटलेस विजेट का देख लो मतलब एज सिंपल एज दैट कि मतलब कुछ अपडेट हो नहीं रहा है यहाँ पे, तो मैंने एक स्टेटलेस विजेट बना दिया यहाँ पे. एज सिंपल एज दैट. ओके, सो नाउ लेट सपोज कि मुझे कुछ करना है, काम करना है स्क्रीन के अंदर. कि मान लो ये वेरिएबल है, इसको अपडेट करना है. सो आई नीड अ स्टेटफुल विजेट फॉर दैट. ओके, so shall I go ahead with the stateful widget? मतलब is it okay? Because थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ने वाला है stateful widget में. Like is it going the learning curve too fast? Like बहुत ऊपर से जा रहा है दिमाग के क्या? Shall I go ahead with stateful? Yeah, you can save with like voice as well. Okay, okay. So मैं थोड़ा stateful पे भी थोड़ा जाता हूँ. Okay. अब देखो मैं जो बोला कि अगर स्टेटलेस और स्टेटफुल, मतलब स्टेटफुल जो विजेट है, स्टेटफुल विजेट में मैं अगर चाहूँ तो स्टैटिक कंटेंट भी बना सकता हूँ ऐसे. अगर मैं इसको बेसिकली कन्वर्ट कर दूं फ्लटर में. बाय द वे ये चीज बहुत सही कि मतलब तुम कंट्रोल और डॉट दबाओगे एंड यू कैन एज सिंपल एज दैट कन्वर्ट दिस टू स्टेटफुल विजेट. अब देखो ये जो स्टेट ऑब्जेक्ट दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली क्या हुआ? जैसे जब भी मैंने स्टेटफुल विजेट बना दिया इसको, एक स्टेट नाम का ऑब्जेक्ट बन गया, क्रिएट स्टेट. ओके, दिस क्रिएट स्टेट मेथड, this makes an object called state object. State object बनाते हैं ये. This state object contains the like current condition of the entire page. Okay, so yeah, जैसे देख लो ये लाइन तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा कि अगर if you are into a bit of Java and any language, I guess you know about object creation. So this is the data type and state type का like object मैं यहाँ पे बना रहा हूँ. So ये देखो home page state. So ये जो state है ये भी मतलब Flutter tree के अंदर जाता रहता है. Okay, जैसे मैं अभी बोल रहा था कि फ्लटर में तुम्हारा एक दिस थिंग इज व्हाट वी आर राइटिंग. ओके, मेन ऐप हमने लिखा, रन ऐप हमने लिखा, दिस माई ऐप हमने लिखा, ये सब तो हम लिख रहे हैं ना. तो दिस इज कॉल्ड द विजेट ट्री. ओके, हम लोग बेसिकली फ्लटर में विजेट ट्री बनाते हैं. ओके, बट देर इज अनदर ट्री दैट फ्लटर बिल्ड्स बाय इटसेल्फ, एलिमेंट ट्री. ओके, व्हाट इज दिस एलिमेंट ट्री?
मैंने जो मेन लिखा, तो ये मेन लिखने पर ये एक मेथड कॉल करता है, आई मीन मेन डॉट क्रिएट एलिमेंट। इससे क्या होता है, मतलब फ्लटर हर प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक एक कोड बना देता है कि मेन ऐप के लिए बना दो। उसके बाद रन ऐप आया, रन ऐप डॉट क्रिएट एलिमेंट, ये क्या करेगा, फिर से एक रन ऐप का मतलब तुम्हारा प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग कोड बना देगा। सिमिलरली विद एवरी विजेट, मान लो ऐसे हम कोई लेट सपोज जैसे इफ यू कंपेयर विद दिस थिंग, जो एक विजेट होता है कॉल्ड कंटेनर विजेट। ओके, कंटेनर विजेट क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ, एज सिंपल एज दैट। कंटेनर बोले तो क्या होता है, चाइल्ड सेंटर है, तो मैं यहाँ पे कंटेनर विजेट बना देता हूँ। you can explain this but simply with this thing, const container क्या हुआ, वेट अ सेकंड, कॉन्स्ट हटा देता हूँ यहाँ पे बिकॉज कंटेनर कॉन्स्ट नहीं होता। सो यहाँ पे कंटेनर विजेट बनाता हूँ, इसका मैं कुछ हाइट देता हूँ, मान लो 200 दे दिया, कुछ विड्थ समथिंग 300 दे दिया मैंने सपोज, एंड इसका कुछ बैकग्राउंड कलर दे, सॉरी कलर दे दिया मैंने कुछ, लेट सपोज कलर्स क्या देते, ब्लैक कलर या फिर ब्लू ही दे देते हैं, ब्लैक सेट। सो देखो ये जो कंटेनर बन गया, तो मैंने यहाँ पे फ्लटर में कोड लिखा कि कंटेनर नाम से। ओके, सो अब बेसिकली ऐसे मान लो मैं इसको वेब में रेंडर करना चाहता हूँ। सो वेब में तो कोई कंटेनर नाम का तो कोई आई मीन कोई ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर तो नहीं रहता ना, कि जिससे मतलब तुम्हारा ऐसा कुछ कंटेंट आ जाएगा। वेब में मान लो ये डिव होता है, जैसे डिव वी ऑल नो जो HTML CSS करते हैं, यू ऑल नो लाइक बहुत क्लियरली जानते हो कि डिव क्या चीज होती है। सो दिस कंटेनर बेसिकली आपका प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कंटेनर जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, वेब में आके डिव में हो जाएगा, एंड्रॉइड में आते हैं एक्टिविटी के अंदर कुछ होता है, एग्जैक्टली डोंट नो दैट थिंग, बट या हर एक लैंग्वेज के स्पेसिफिक कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज द विजेट लाइक एलिमेंट ट्री दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। दिस एलिमेंट ट्री इज बेसिकली फ्लटर का खुद का मेथड होता है कि खुद के लाइक जो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक क्या क्या कोड लिखना है वो बना लेता है अपने मर्जी से। ओके, सो दिस थिंग इज देयर। सो अब मैं जाता हूँ यहाँ पे स्टेटफुल और स्टेटलेस में फिर से। मैं जो बोला कि देखो स्टेटफुल में भी ये काम मैं कर पा रहा हूँ, राइट। मैं यहाँ पे भी एक बॉक्स दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पे कोई स्टेट तो नहीं है ना, तो स्टेट चेंज की जरूरत ही नहीं है मुझे यहाँ पे, बट स्टिल आई कैन लाइक शो दिस थिंग। तो अगर आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए अभी कि मतलब स्टेटफुल विजेट से अगर मैं स्टेटलेस का काम कर सकूं, तो मैं स्टेटलेस विजेट लाऊंगा ही क्यों। सो डज एनीबडी हैव द हिंट कि मतलब इसका आंसर क्या हो सकता है, कि मतलब हाँ क्या बोलता हूँ मुझे, द बॉडी होल्ड्स एन एट्रीब्यूट चाइल्ड, हाँ ऑफ कोर्स या। सो यप यप यप, क्या शुभल क्या बोला, आर यू मेकिंग द कॉलम्स इन सब फोल्डर, एक्चुअली शुभल आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन, कैन यू रिपीट अगेन, I mean, it's not very clear. You can say in voice as well if you want. Open your mic and say. Are you there? Okay, you can say it later on as well. I'll. Okay, okay, fine, 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 fine. I'll go ahead. So what I asked right now is कि अगर stateful से भी stateless का काम हो जाए, तो मैं what is the requirement for stateless widgets? डज एनीबडी हैव एनी आइडिया कि मतलब जो अभी बोल रहा हूँ इस बेसिस में कुछ समझ आया कि मतलब क्या हो सकता है द रीजन फॉर दिस, कि स्टेटफुल से अगर स्टेटलेस काम हो रहा है तो मैं स्टेटलेस विजेट की जरूरत ही क्या है यहाँ पे। आई कैन लाइक कुछ भी आंसर दे सकते हो, वट एवर यू फील। if you don't use a state variable it will take exactly या एग्जैक्टली दैट इज द थिंग। बेसिकली जो मैं यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे एक स्टेट ऑब्जेक्ट बन रहा है ना यहाँ पे, तो वो जो स्टेट ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली लाइक इट इज टेकिंग अप द मेमोरी, नॉट एग्जैक्टली मेमोरी। यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टेट ऑब्जेक्ट है ना, इसके अंदर लाइक इफ यू गो देयर आर मेथड्स लाइक ऑल ऑफ यू मस्ट बी फैमिलियर अ बिट विद लिसनर्स। ओके, तो जो स्टेट का जो ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, उसके अंदर देर इज दिस लाइक थिंग, जो स्टेट ऑब्जेक्ट है ना, उसके अंदर देर इज दिस थिंग कॉल्ड अ लिसनर। ओके, बेसिकली लिसनर क्या काम करता है, ये लिसनर बेसिकली तुम्हारा स्टेट अपडेट हो रहा है कि नहीं, सो वो लिसनर को, ये लिसनर बेसिकली इज लिसनिंग ऑल द टाइम टू द स्टेट। सो या टेक्निकली मेमोरी को ही मतलब मेमोरी वेस्टेज यहाँ पे हो रहा है। मान लो हमें स्टेट अपडेट ही नहीं करना, बट ये पूरे टाइम बैठ के लिसन कर ही जा रहा है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ऊपर से अगर इनकेस हम यहाँ पे प्रॉपरली स्टेट को डिस्पोज ना करें तो वो लिसनर रह ही जाएगा, and that is again a bad thing and cause memory leaks. So in that case, that is the reason why we use
stateless widgets when we are not making something that involves some state. So is the like reason clear to you all? What I mean, I told about the stateful and stateless. Okay. Yeah. By the way, Ashi, stateful for jump next page. What do you mean by that? Can you repeat your question, or like if you have any confusion regarding that? Hmm. Okay, fine. You can tell it again later again. I'll go ahead. So yeah. So now I have like converted this to a stateful widget. Okay. सो यहाँ पे देखो स्टेटफुल में मेरे पास एक स्टेट ऑब्जेक्ट बन चुका है. अब मान लो मुझे क्या करना है कि मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे एक सिंपल सेंटर में ही मैं फिर से एक और जो कॉलम था, वेट इफ आई जस्ट डिलीट दिस थिंग, जस्ट सेकंड, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ. यहाँ पे एक कॉलम नाम का विजेट बनाता हूँ. कॉलम विजेट क्या है कि मान लो जैसे हम लोग क्या कहते हैं, आई मीन वेब डेव में, आई गेस यू आर फेमिलियर विद दिस थिंग कॉल्ड फ्लेक्स. ओके, ये कॉलम बेसिकली फ्लेक्स का ही काम करता है. कॉलम जो फ्लेक्स कॉल होता है ना, हम लोग सीएस में यूज करते हैं फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स, देन फ्लेक्स डायरेक्शन फ्लेक्स कॉल जो करते हैं ना, दैट इज व्हाट दिस कॉलम ऑब्जेक्ट कॉलम थिंग इज अबाउट. सो इस कॉलम के अंदर क्या रहता है, चिल्ड्रन रहते हैं कॉलम के अंदर. मैं छोटा सा एग्जांपल दिखा दूं. यहाँ पे एक यहाँ पे हेलो लिख रहा हूँ, और यहाँ पे एक और मैं एक मटीरियल चाइल्ड मटीरियल बटन. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट यहाँ पे दिख सकता है, बट जस्ट मेक श्योर इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू ऑल. सो टेक्स्ट और यहाँ पे अपडेट. सो इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा बीच में लेके आऊंगा, डॉट सेंटर. जो अभी मैं बोला कि यहाँ पे कलम इज बेसिकली क्या, एक फ्लेक्स का प्रॉपर्टी, फ्लेक्स टाइप का बन जाता है यहाँ पे, डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स कॉलम. सो आई गेस जो सीएसएस करते हैं उनको पता होगा कि मतलब जैसे ये अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज रहती है, वहां पे जस्टिफाई कंटेंट रहता है आइटम्स का, आइटम्स सेंटर या फिर ऐसे जो करते हैं ना, दिस इज दैट थिंग ओनली, मेन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर. तो यहाँ पे मैं कुछ एक और काम करता हूँ, कलर भी दे देता हूँ. क्या प्रॉपर्टी है, कुछ कलर नाम का, हाँ कलर. यहाँ पे कलर्स डॉट, ताकि क्लियरली दिख जाए, मैं स्टेट की बात यहाँ कर रहा हूँ. या सो देखो यहाँ पे एक बटन मैंने बना दिया, एज सिंपल एज दैट. इस बटन को क्लिक करने पर अभी कुछ होता नहीं है. मान लो मैं चाहता हूँ कि द मोमेंट आई क्लिक ऑन दिस बटन दिस हेलो अपडेट्स. ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, राइट? अब फ्लटर में भी लाइक एज एवरी लैंग्वेज यहाँ पे भी ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल होते हैं. अगर कुछ यहाँ पे इस जगह पे लाइक लाइन नंबर 2 जहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अगर तुम कुछ लिखोगे दैट इज अ ग्लोबल वेरिएबल. और इफ यू लाइक, मैं लाइन नंबर जो दिखा रहा हूँ ये 3 के अंदर, सॉरी 3 नहीं 10 के अंदर, या 10 के अंदर कुछ भी यहाँ पे अगर लिखोगे दैट इज अ लोकल वेरिएबल. तो मैं यहाँ पे लोकल वेरिएबल बनाता हूँ, एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप. यहाँ पे स्ट्रिंग छोड़ो, मुझे ये थी, मैं सिंपल स्ट्रिंग टेक्स्ट तो यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ हेलो. यप. सो और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं बेसिकली यहाँ पे टेक्स्ट नाम का जो वेरिएबल है मैं ये कॉल कर दूंगा. एज सिंपल एज दैट, अपडेट हो गया ये देखो. मतलब बहुत ही सिंपल सा चीज है. यहाँ मैं इसको प्रॉपर्ली स्ट्रिंग ही कर देता हूँ. वेट अ सेकंड, स्ट्रिंग. ये देखो स्ट्रिंग हेलो, मैं ये लिखा यहाँ पे और इसको मैंने टेक्स्ट में यहाँ पे प्रिंट करवा दिया. एज सिंपल एज दैट. अब मान लो मैं चाहता हूँ कि ये बेसिकली अपडेट करवाना है मेरे को, तो बहुत ही सिंपली मैं ये अपडेट करवा सकता हूँ यहाँ पे. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देयर इज जो स्टेट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आई हैव एन मेथड कॉल्ड सेट स्टेट. अब सेट स्टेट क्या है, जैसे हम रिएक्ट में लाइक देयर इज अ थिंग कॉल्ड यूज स्टेट हुक, वैसा ही काम करते हैं, कुछ भी नहीं. मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट इक्वल टू बाय, तो मैं यहाँ पे करूंगा ऑन क्लिक, तो देखो बाय हो गया, अपडेट हो गया, राइट? सो इट्स एज सिंपल एज दैट. देखो मुझे कितना कोड लिखना पड़ा इसके लिए. मैं एक यहाँ पे स्टेटफुल ऑब्जेक्ट बनाया या विजेट बनाया, उसके अंदर मैंने ये कोड लिखा, और इट्स लाइक एज सिंपल एज दैट, राइट? सो आई गेस दिस पार्ट इज क्लियर विद यू ऑल. ओके, so I won't further go with the code. I will now, I mean, go with the Flutter roadmap, because यहाँ पे मैं Flutter सिखाने नहीं आया हूँ. I will like talking about this language and showing you कि कितना simple language ही है. यही काम अगर तुम React Native में करने जाओगे तो this would be like pretty much complicated.
So I guess like you do you have this idea like Flutter में like how simple things are? Like do you agree to me on this statement कि Flutter बहुत simple है? Yeah, I guess. Okay. Hope you does not agree with me. Nice. Anyways, so let's go ahead. Okay. So I'll again go back to that presentation. Just a second. Now I'll be like showing you the roadmap for this Flutter thing. Just a second. Just 1 minute. Is the screen visible? Oh, I guess it's not yet. Just a second. Entire screen. Okay. Yeah, is the screen visible? Can someone say in voice only because like showing the entire screen? Yeah, visible. Okay. So now let's go with this thing called this quick roadmap. Okay. Now like this is I guess the second last part of this webinar, and then I will be like going to the Q&A session. So like how to like start. Okay. So जब शुरू करोगे you need some kind of strong inspiration. Okay. मतलब क्यों करना है तुम्हें, like why do you want to use Flutter? Okay. जो मैं reasons बोला I guess you can consider that, and regarding this entire thing called this app dev, मतलब you need a strong motivation behind this, because अगर शुरू करोगे without any motivation कि चलो करते हैं without any motivation, 5 दिन बाद लगेगा कि क्या ही हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, फालतू है, so it won't work. So you need a strong motivation like क्या कि मान लो you go to the app store, you go to the play store, apps को देखो, like inspire हो कि मतलब wow this is so amazing, इतना कुछ हो रहा है यहाँ पे. So that's how you get the motivation to start. Okay. Now after like you get the motivation, okay fine, motivation मिल गया है, अब क्या करना है? सबसे पहले तुम्हें सीखना है विजेट्स. ओके. अब जो मैंने बोला विजेट क्या होते हैं, विजेट के कितना टाइप होते हैं, क्या क्या विजेट में होता है, सो दैट्स व्हाट यू नीड टू लर्न. बाय द वे यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन आ रहा होगा कि मतलब फ्लटर में जो लिखेंगे हमें तो डार्ट लैंग्वेज के बारे में ही नहीं पता, सो हाउ विल वी स्टार्ट? आई वुड से कि मतलब तुम्हें देखो डार्ट लैंग्वेज अगर इफ यू लाइक ट्राई टू लर्न इट सेपरेटली, तुम्हें वो बहुत ज्यादा ही जावास्क्रिप्ट जैसा लगेगा या फिर जावा और जावास्क्रिप्ट मिक्स से लगेगा. सो आई वुड से कि मतलब अलग से अगर लैंग्वेज सीखने जाओ दैट इज नॉट दैट मच आई गेस यूजफुल फॉर यू, बिकॉज अगर लैंग्वेज बैठ के सीखोगे जब कोड करने जाओगे एक्चुअल रियल लाइफ प्रोजेक्ट में सब दिमाग के ऊपर से जाएगा. सो व्हाट माय सजेशन इज कि लाइक डायरेक्टली किसी प्रोजेक्ट में कूद पड़ो, कोई इफ पॉसिबल कोई यूट्यूब ट्यूटोरियल देखो, मतलब कोई क्लोन कर रहा है कुछ लाइक बहुत सिंपल प्रोजेक्ट से स्टार्ट करो, मान लो एक टू डू ऐप टाइप का थिंग, सो विद दैट यू कैन स्टार्ट. ओके. एनीवेज कमिंग बैक टू दिस विजेट थिंग. सो सबसे पहले यू नीड टू लर्न अबाउट व्हाट अ विजेट, मतलब विजेट देखना पड़ेगा क्या होता है, विजेट के कितने टाइप्स होते हैं ये सीखना पड़ेगा. तो दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट थोड़ा कि तुम्हें यूज केस समझ आना चाहिए कि मतलब कहाँ पे स्टेटलेस यूज करना है, कहाँ पे मुझे स्टेट चाहिए, कहाँ पे स्टेट फुल यूज करना है, ये चीज समझना पड़ेगा. और विजेट बोले तो मैं बेसिक विजेट की बात कर रहा हूँ, ऐसे कंटेनर विजेट हो गया जो मैं अभी यूज किया, टेक्स्ट विजेट हो गया, कलम विजेट हो गया, ऐसे लिस्ट व्यू विजेट होंगे, ऐसे लाइक स्टार्ट करके कोड करना तो मिलते ही रहेंगे ऐसे विजेट्स, लाइक किसी भी ट्यूटोरियल में मिल जाएगा. एंड आई एम नॉट एग्जैक्टली लाइक गोइंग टू द निटी ग्रिटी ऑफ दोज थिंग्स. सो उसके बाद लाइक यू आर बी थिंकिंग जेसन यहाँ पे कहाँ से आ गया, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जो लोग ज्यादा जेसन यूज नहीं करते, आई वुड से कि लाइक फ्लटर में लाइक इफ यू नो जेसन बहुत इजीली काम कर पाओगे, बहुत ज्यादा यूज होता है जेसन, मतलब ऑब्जेक्ट टाइप बना के जेसन ऑब्जेक्ट से मतलब बहुत इजीली यू कैन वर्क विद दैट. सो आई वुड से कि विजेट के बाद ही जेसन सीखो एंड उससे डेटा पास करना सीखना पड़ेगा. सो पहली बात जेसन क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन. सो बहुत ही इजीली डेटा तुम इससे इधर उधर कर सकते हो, मतलब यू कैन रीड राइट बहुत इजीली. सो you need to learn about how to write and receive like read JSON files. Okay. So are these first 3 steps like clear to you all? Voice में ही बोलना कोई, because I can't exactly see the thing. Yes. Okay. So going ahead, now there is this concept of async await. जो लोग जावास्क्रिप्ट करते हैं उन लोगों को पता होगा, जावास्क्रिप्ट या फिर किसी भी लैंग्वेज में काम करते हैं, सो यू माइट बी नोइंग अबाउट दिस थिंग कॉल्ड async await. कुछ हो रहा है किसी के लिए, कोई फंक्शन काम करे, उसके लिए अवेट करो टिल दैट मेक द फंक्शन असिंक. सो बेसिकली इसका यूज क्या है कि बेसिकली मान लो कोई
फेचिंग हो रही है, डेटा फेचिंग हो रही है, तो अगर डेटा फेच नहीं हुआ तो उस डेटा के ऊपर तुम काम नहीं कर पाओगे। सो उसके लिए तुम्हें अवेट कर देना होगा कि मतलब वेट अंटिल दिस डेटा इज फेच्ड, उसके बाद तुम्हें कुछ फंक्शन करना है। तो दिस async await इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन फ्लटर। यहाँ पे तुम्हें जैसे नॉर्मल वेब डेव में तो कोई जनरली एपीआई कॉल्स या इस टाइप का कुछ फंक्शन होता है, तो वहां पे भी यूज अवेट। और लाइक लेट सपोज कोई बड़ा लाइक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कुछ डेटा रीड हो रहा है कुछ, या फिर कुछ एडिट हो, कुछ पार्स हो रहा है, कुछ टाइप का थिंग, तो वहां पे अवेट यूज होता है। तो बट फ्लटर में यू वुड बी यूजिंग दिस async await a lot, बहुत ज्यादा यूज होगा। सो you need to understand the concept of async await. Now comes a very controversial part, I would say. बहुत लोग कहते हैं कि like if you want to do become an app developer, you need not know UI क्या होती है, UX क्या होती है. But I would say कि अगर तुम्हें UI UX पता नहीं है, तो you will be always dependent on someone else कि तुम्हारा UI बना के दे and तुम उसके ऊपर बनाओगे. So you need to have an understanding कि किसके ऊपर क्या अच्छा लगता है। मान लो कि कलर्स यूज कर रहे हो, तो रेड के ऊपर कुछ लाइक अजीब सा ब्राउन कलर इफ यू यूज, अच्छा नहीं लगेगा वो चीज। लाइक यू टू हैव दैट आइडिया कि मतलब क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है। तो लाइक इफ यू हैव दिस आइडिया अबाउट यूआई, बहुत इजीली तुम एप्स पे बना पाओगे, काम कर पाओगे। एंड दैट क्लीन कोड क्या चीज है। मान लो कि तुम कोड लिखे जा रहे हो, मतलब सब कुछ मेन के अंदर लिख दिया, मेन डॉट आर्ट के अंदर तुम्हारा एंटायर कोड, दैट इज एक्चुअली पॉसिबल। मतलब तुम चाहो तो लाइक पूरा ऐप ए टू जेड सब कुछ मेन डॉट आर्ट में लिख सकते हो, 2-3 हजार लाइन लिख दिया बन जाएगा यार। बट दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा था कि मतलब फोल्डर फोल्डर बना रहा था कि मॉडल बना दिया, उसके अंदर सर्विस बना दिया, यहाँ पे यूट्यूब नाम का फोल्डर बनेगा, थीम बनेगा। सो फोल्डर के अंदर ऑर्गेनाइज करना, कंपोनेंट्स बनाना, तो एक क्लीन आर्किटेक्चर होता है इसके लिए, फ्लटर के लिए, कि मतलब हर चीज को प्रॉपरली चीज मतलब मेंटेन करना। क्योंकि अगर बहुत ही गंदा कोड लिखोगे तुम, तो खुद ही नहीं कर पाओगे मतलब कि क्या लिखा मैंने, यहाँ पे कहाँ पे वो था, कहाँ पे ये था। प्लस ऑल्सो गुड कोडिंग प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं अभी कर रहा था यहाँ पे, आई विल शो यू एन एग्जैक्ट एग्जांपल यहाँ पे, कि जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग के पहले ये जो, अगर यहाँ पे मैं वेर लिख दूं, दिस ऑल्सो वर्क्स। टेक्निकली क्या होगा कि ये देखो टाइप में स्ट्रिंग कन्वर्ट कर लिया इसने, बट जो कन्वर्शन हुआ दिस इज थोड़ा सा भी वो मेमोरी इंटेंसिव है। ओके, तो जैसे ये कन्वर्शन हुआ, इसमें टाइम लगा। जैसे यहाँ पे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट अगर यहाँ पे नहीं भी डालोगे तो दैट्स फाइन, बट अगर कॉन्स्ट नहीं डालोगे तो फ्लटर सोचेगा कि ये जो देखो एरर दिखा रहा है कि मतलब इम्प्रूव परफॉर्मेंस, क्या होता है कि फ्लटर सोचेगा कि ये टेक्स्ट मैंने बनाया ना, ये बाद में मैं चेंज भी कर सकता हूँ। तो अगर मुझे पता है कि मुझे चेंज नहीं करना, तो मैं कॉन्स्ट डाल दूंगा यहाँ पे, तो एक यहाँ पे मेमोरी बच जाएगी मेरी। सो दीज आर लाइक सम काइंड ऑफ क्लीन कोड प्रैक्टिसेस, सो यू कैन इम्प्लीमेंट, यू नीड टू इम्प्लीमेंट दैट ऑफ कोर्स। लाइक अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाओगे, वहां पे ऐसा कोड लिखोगे तो 2 दिन बाद तुम्हें निकाल देंगे, as simple as that. So clean code is very important. Now if I go, then comes this API calls. तो एपीआई कॉल तो मतलब दैट इज लाइक करना ही पड़ेगा, लाइक वट एवर यू आर डूइंग ऐप में तुम्हें तो एपीआई यूज करना ही पड़ेगा इफ यू आर मेकिंग समथिंग प्रॉपर। कोई डेटा, यूजर डेटा कलेक्ट कर रहे हो, कुछ पोस्ट रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट कुछ करना है, तो यहाँ पे एपीआई यूज करना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग वेब डेव के लिए वी हैव द पैकेज कॉल्ड Axios, बहुत पॉपुलरली यूज होता है। फ्लटर में ऐसा ही पैकेज है, डीओ है या डीआईओ ऐसा नाम का, एक और HTTPS नाम का पैकेज है। सो देयर आर लॉट ऑफ लाइक एपीआई कॉलिंग पैकेजेस, यू कैन यूज दैट एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट विद फ्लटर। यहाँ पे बहुत इजीली तुम्हारा एरर हैंडलिंग हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, एंड दैट्स सिमिलर टू लाइक वेब डेव में जैसा होता है, सेम टाइप का चीज है यहाँ पे। नाउ कम्स द स्टेट। मैं थोड़ी देर पहले स्टेटफुल और स्टेटलेस की बात कर रहा था। तो इफ आई नाउ गो डीप इनटू दिस थिंग, जो हम यहाँ पे बेसिक कर रहे थे यहाँ पे, ये तो ठीक है, स्टेट मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मान लो मैं कंपोनेंट वाइज जब डिवाइड करूंगा, कोई मान लो ये मैंने टेक्स्ट वेरिएबल है, मान लो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट वेरिएबल मैंने यहाँ पे बनाया, ओके। सो इफ आई मेक अनदर स्क्रीन एग्जांपल, मान लो यहाँ पे मैंने टेस्ट स्क्रीन नाम का कुछ फाइल बनाया, तो यहाँ पे STFX स्टेट फुल विजेट बना दिया मैंने, कुछ भी टेस्ट स्क्रीन नाम का या कुछ भी विजेट है यहाँ पे। तो बताओ मैं यहाँ पे क्या ये टेस्ट विजेट, यहाँ पे टेक्स्ट विजेट क्या मैं ले पाऊंगा? ऑफ कोर्स नहीं ले पाऊंगा, बिकॉज दिस इज पहली बात है ये एक लोकल वेरिएबल है। दूसरी बात है कि मतलब मैं यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे कोई टेस्ट नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे टेस्ट लिखूंगा तो कुछ है नहीं, टेक्स्ट बेसिकली जो दिख रहा है यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है और कुछ नहीं है, मतलब बेसिकली ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे टेक्स्ट जो विजेट है वेरिएबल है, यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आई नीड टू लाइक हैव सम काइंड ऑफ स्टेट मैनेजमेंट, राइट? कि मतलब ऐप के अंदर जैसे यूजर लॉग इन किया, तो यूजर का क्रेडेंशियल्स, यूजर नेम वगैरह ये सब मुझे स्टोर करवाना पड़ेगा ना कहीं पे।
तो दैट इज वेयर द स्टेट मैनेजमेंट कम्स इन। फ्लटर में बहुत सारे स्टेट मैनेजमेंट पैकेजेस है, लाइक ब्लॉक है, प्रोवाइडर है, देन देयर इज रिवर पॉट। दीज आर लाइक अमेजिंग स्टेट मैनेजमेंट टूल्स इन फ्लटर। तो ये ऐप के स्टेट को मेंटेन करते हैं। सो स्टेट मैनेजमेंट इज प्रिटी मच एक्चुअली अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आई वुड से, बट यू नीड टू कम, लाइक यहाँ तक अगर तुम आ जाओगे, स्टार्ट किया, विजेट बना, जेसन यूज कर लिया, असिंक का वेट कर लिया, यूआई अच्छे से सीख लिया, क्लीन कोड लिखना सीख गए, एपीआई कॉल सीख गए, उसके बाद स्टेट वोंट बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर यू। उसके बाद एक और चीज आती है लोकल स्टोरेज। दिस लोकल स्टोरेज तुम पहले भी सीख सकते हो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब तुम कुछ स्टोर करना चाहोगे, मतलब फ्लटर में वैसे वेब में वी डोंट हैव लाइक स्टोरेज रहता है, ऑफ कोर्स लोकल स्टोरेज वहां पे रहता है, जैसे विंडो के अंदर स्टोर हो रहा है चीजें, बट द थिंग इज कि यहाँ पे हमें उससे भी ज्यादा यूज होना पड़ेगा, बिकॉज जैसे मान लो कुछ ऐप तुम इंस्टॉल करते हो, लेट सपोज ऐप 30 MB का कोई ऐप है तुमने इंस्टॉल किया, सो आफ्टर यू इंस्टॉल दैट ऐप, व्हेन यू गो टू सेटिंग्स एंड चेक इट, सो देखोगे कि ऐप का साइज इज लाइक समथिंग 300 MB 400 MB भी हो सकता है। सो क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐप इज स्टोरिंग सम डेटा, राइट? जैसे कोई इमेजेस फाइल्स है, ऑडियो फाइल्स है, या फिर कुछ भी है, सो दैट ऐप इज लाइक स्टोरिंग सम डेटा। सो इन दैट केस दिस लोकल स्टोरेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्लटर। सो मतलब कुछ सिंपल करना है तो देयर इज लोकल स्टोरेज का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिलता नहीं है। यहाँ पे शेयर्ड प्रेफरेंस नाम का पैकेज मिल जाता है, हाइव होती है, जो एसक्यूएल लिखते हैं यहाँ पे एसक्यूएफ लाइट नाम का पैकेज मिलता है। सो दीज आर द लोकल स्टोरेज मेथड्स, लाइक इजीली कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज आफ्टर दैट फायरबेस। फायरबेस तो लाइक हर कोई यूज करता ही होगा, लाइक वेब के लिए तो कर ही लिया होगा तुमने यूज, यहाँ पे भी कर लेना, बिकॉज इट्स प्रिटी मच फ्लटर के अंदर फायरबेस का पैकेज मिल जाता है, एंड एवरीथिंग इज प्रिटी मच इंटीग्रेटेड। फायरबेस भी एक दो लाइन लिखोगे तो इजीली कॉन्फ़िगर हो जाएगा। फायरबेस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो मान लो कोई छोटा सा ऐप तुम्हें बनाना है, कि मान लो एक सिंपल सा यूजर ऑथेंटिकेशन रहेगा वहां पे, एंड सम काइंड ऑफ डेटा स्टोरिंग करना है, एंड बहुत स्केलेबल ऐप नहीं है, एंड कुछ छोटे मोटे लेवल पे तुम कर रहे हो, इन दैट केस फायरबेस बिकम्स अ प्रिटी गुड टूल, राइट? सो यहाँ पे तुम फायरबेस यूज कर सकते हो। देन कम्स द आइसोलेट्स। आइसोलेट क्या होती है कि फ्लटर में वेन एवर वी आर लाइक, इफ आई गो टू लाइक कहाँ यार, yep, if I go here, so flutter में like whatever happens is ना, this main app मैं दिखाया यहाँ पे, flutter में everything like works in a single thread. Okay, now threading is again थोड़ा सा complicated topic यहाँ पे हो जाएगा। फ्लटर के अंदर जो भी होता है ना, सब कुछ इस मेन ऐप के अंदर होता है, एकदम सिंगल थ्रेड प्रोसेस होता है। तो मान लो यहाँ पे अगर मैं कुछ एक बहुत ही हैवी इंटेंसिव टास्क दे दूं, कि मान लो एक फॉर लूप चला दिया मैंने, 4 लाख तक, 4-5 लाख तक फॉर लूप चला दिया मैंने, तो जब तक रन होगा ना, ऐप का पूरा फंक्शनिंग सब कुछ रुक जाएगा। सो इन दैट केस यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कॉल्ड आइसोलेट। ओके, आइसोलेट में क्या होता है कि मान लो मुझे जो ये फॉर लूप है, ये 4 लाख तक चलाना है, सो ये सेपरेटली रन करेगा और मेरा ऐप सेपरेटली रन करेगा। सो यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग का काम आ जाता है। तो दैट इज अगेन लाइक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बट you need to know about it when you are working on big apps. So coming back to here, now comes another important thing, channels. So Flutter channels क्या चीज होती है? ये Flutter का एक बहुत ही important चीज है। important मतलब अभी important नहीं लगेगा when you start, but when you go deep into your apps, हम लोग फ्लटर में इफ यू वांट वी कैन एक्सेस सम नेटिव मेथड्स एज वेल। ओके, जैसे मान लो कोई एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड के अंदर एक बहुत ही सिंपल सी मैं एग्जांपल बोलता हूँ, देयर इज अ थिंग कॉल्ड बैटरी मैनेजर इन फ्लटर, इन एंड्रॉइड सॉरी, इन एंड्रॉइड में एक थिंग, एक इंटरनल ऑब्जेक्ट है वो, कि बैटरी मैनेजर क्या रिटर्न करता है, आपके एंड्रॉइड फोन का बैटरी स्टेटस बताता है कि मतलब चार्ज हो रहा है कि नहीं, या फिर कितना परसेंटेज चार्ज है। तो ये जो फ्लटर चैनल है, मैं इसके थ्रू, मैं जो ये नेटिव मेथड है कॉल्ड बैटरी मैनेजर, ये बैटरी मैनेजर मगर फ्लटर में नहीं है, ये आपका कॉटलिन या फिर बेसिकली जो जावा है उसके अंदर का एक नेटिव कोड है। तो मैं थ्रू चैनल्स, मेथड चैनल बेसिकली, मैं एक्सेस कर सकता हूँ कोई नेटिव मेथड भी। सो दैट इज अनदर ब्यूटी ऑफ फ्लटर, लाइक फ्लटर, यूजिंग फ्लटर यू कैन एक्सेस सम नेटिव मेथड्स एज वेल। सो लाइक यहाँ पे कोई बैरियर ही नहीं आ रहा कि मतलब नेटिव में कुछ हो रहा है, so I can't use that, नेटिव कंपोनेंट्स भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। so that is another plus point. So now coming to the last part here, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक। प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक क्या होता है कि जैसे मैं अभी दिखा है यहाँ पे कि, अच्छा बाय द वे, लाइक एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? आई थिंक आई एम गोइंग अ बिट टू फास्ट ओवर हियर। या टेल। या जामिल टेल।
Hello, am I audible? Yep. Yeah. So my question is that the widget concept is basically like the fundamental building block for user interface. Am I right? Yep. So there are how many widgets we have to know, like widget See, hierarchy or do something with like this. that? Got it. Firebase is not a widget, by the way. I guess you told that, but yeah. So widget, देखो widget का जो चीज है यहाँ पे, widget basically देखो मतलब मैं क्या बोलूँ, widget का बहुत ही विजेट होते हैं, बट अगर अभी लग रहा हो कि मतलब इतने सारे विजेट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और सब दिमाग के ऊपर से आ रहा है, मैं यहाँ पे लिस्ट को यूज कर दिया, यहाँ पे कलम विजेट यूज कर दिया, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट विजेट यूज कर दिया, इतना कुछ मैं यूज कर रहा हूँ, सो लग रहा होगा कि मतलब कितने विजेट सीखूंगा मैं। बट द थिंग इज कि जब आप कोड करना शुरू करेंगे, दो चार जब कुछ ऐप बनाएंगे ना, उसके बाद से यू विल फाइंड कि उतना डिफिकल्ट लग नहीं रहा। जैसे मैं यहाँ पे यूज किया, मैं क्या यहाँ पे मतलब कहीं से देख के किया, ऑफ कोर्स नहीं, मगर ये जो चीज मैं किया यहाँ पे ऐसे टेक्स्ट वेट यूज कर रहा हूँ, ये हर जगह यूज होता है। अब जो सबसे यहाँ फ्लटर की चीज है या फिर किसी भी लैंग्वेज का, देखो भाई एट द एंड ऑफ द तुम्हें स्टैक ओवरफ्लो में जाना ही पड़ेगा एंड वहां से ही कोड कॉपी करोगे, मगर या लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। बट टेक्निकली तुम्हें मतलब इतना आइडिया होना चाहिए कि मतलब मान लो मैं कोई यूआई बनाना चाहता हूँ, तो बस इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैं इस विजेट को यूज कर सकता हूँ। अब विजेट का इम्प्लीमेंटेशन तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, या फिर तुम गूगल भी कर सकते हो, या फिर वही है कि कुछ बेसिक विजेट्स होते हैं, जैसे मैं बोला यहाँ पे लिस्ट व्यू नाम का एक बेसिक विजेट होता है, दिस मटीरियल ऐप इज अ बेसिक विजेट जो तुम्हें जानना पड़ेगा। टेक्स्ट विजेट बहुत सारा यूज होगा, इमेज नाम का एक विजेट बाद में यूज होगा बहुत ज्यादा। तो ये कुछ विजेट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ये मतलब हर एप्लीकेशन में ही यूज होंगे। तो अगर तुम फ्लटर में कोडिंग स्टार्ट करोगे, तो कुछ ऐप बनाते बनाते ही सीख जाओगे मतलब विजेट क्या होते हैं, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा कि मतलब याद रखने में, इट्स नॉट अ बिग डील। विजेट का तुम्हें दिख ही गया ना, बहुत ही इजी है। इनफैक्ट तुम खुद भी अपना विजेट बना सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते, खुद भी लाइक स्क्रैच से कोई विजेट बना सकते हो। सो आई गेस दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। Yeah, that answered pretty much and very well. So my next question is like in Web3 we mostly use Solidity. So can we make Web3 related project in Flutter? फ्लटर में अभी तक की वेब थ्री की बात मैं करूँ, तो फ्लटर में लाइक सॉलिडिटी आई गेस इट सपोर्ट्स। जैसे फ्लटर का आई वोंट एग्जैक्टली से अबाउट दिस थिंग कि मतलब करता है कि नहीं, आई नेवर यूज एग्जैक्टली, बट आई वुड से कि अगर इफ दैट थिंग वर्क्स ऑन योर वेब, इट प्रीटी मच विल वर्क ऑन फ्लटर एज वेल। बिकॉज जनरली अगर तुम कोई भी चीज मान लो अगर वेब में काम करता है, तो देयर इज अ वे आउट इन फ्लटर। ओके, ये यू कैन टेक दिस थिंग फॉर ग्रांटेड, लाइक anything that is working on web you can get this thing on like nearly flutter, like 99% हर चीज मिल ही जाएगा तुम्हें, उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन मिल ही जाएगा। मान लो कोई एपीआई यूज कर रहे हो, सिंपली उसी के थ्रू कर सकते हो ना। मान लो तुम यहाँ पे सॉलिडिटी की बात कर रहे हो, तो आई एम नॉट वेरी मच फेमिलियर विद सॉलिडिटी, बट या थोड़ा सा आइडिया कि लाइक इट्स लाइक यूज इन दैट थिक पार्ट। तो यू कैन यूज दैट, लाइक इफ यू कैन यूज इट इन वेब, यहाँ पे भी यूज कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब टेक्निकली इसका कोई ऑल्टरनेटिव यहाँ मिल ही जाएगा तुम्हें, हो सके तो। या फिर देयर इज अ थिंग कॉल्ड pub.dev, आई विल सजेस्ट यू ऑल कि जब फ्लटर में काम शुरू करोगे, ये लाइक दिस विल बी योर होम पेज। यहाँ पे कुछ भी लाइक फॉर एग्जांपल मैं फायरबेस की बात कर रहा था यहाँ पे, फायरबेस की यहाँ पे बात कर रहा था, यहाँ पे फायरबेस सर्च किया मैंने, देखो हर चीज का पैकेज तो यहाँ पे मिल जाएगा, ऐसे एनपीएम जैसा होता है ना, तो फायरबेस का देखो हर एक टाइप का पैकेज यहाँ पे तो मिल जाएगा, एंड दीज पैकेजेस आर प्रीटी मच वेल बिल्ट। जैसे मैं अभी डेटा फेचिंग की बात कर रहा था, डीओ की बात मैं कर रहा था, डीओ नाम का पैकेज, देखो ये डीओ का एपीआई कॉलिंग का पैकेज है, हर चीज पे मिल जाएगा, ऐसे ऑडियो प्लेयर हर चीज का तुम्हें पैकेज यहाँ पे मिल ही जाएगा। सॉलिडिटी आई डोंट थिंक एग्जैक्टली पैकेज मिलेगा, बट इसका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा। जैसे ये देखो वेब थ्री डार्ट है, दिख रहा होगा राइट। सो दीज काइंड ऑफ स्टफ, लाइक इफ यू गो एंड एक्सपेरिमेंट विद दिस थिंग्स लाइक दीज पैकेजेस, तुम्हें कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल ही जाएगा। बिकॉज लाइक फ्लटर एक ओपन सोर्स कम्युनिटी का होता है, बहुत ही ओपन सोर्स कम्युनिटी है फ्लटर का। सो हर कोई मतलब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता ही रहता है यहाँ पे, सो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू गेट लाइक समथिंग आउट ऑफ हियर। सो दैट्स दैट, आई गेस दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। Yeah, thank you. My third question about API related, like in One more TensorFlow. thing, just a second, Jamilu, like the AP question answer session would be just after like थोड़ी देर बाद ही होगा, तो मैं खत्म करने तो you can ask the questions after that. Okay, 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 no problem. थोड़ा सा रुक जाओ. Yeah. So now I come to this last part of this roadmap.
नाउ प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक। तो ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक क्या होता है कि जब मैं बोला ना यहाँ पे एंड्रॉइड का, जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल यू वांट टू चेंज समथिंग इनटू दिस थिंग लाइक दिस build डॉट ग्रेडल, वेट अ सेकंड लेट मी गो हियर। तो ये जो build डॉट ग्रेडल नाम का फाइल है, यहाँ पे तुम्हें यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे मान लो जब ऐप का रीनेम करोगे तो यहाँ पे रीनेम करना पड़ेगा, या फिर कुछ वर्जन, यहाँ पे फ्लटर का वर्जन, एसडीके वर्जन अपडेट करना होगा, तो तब यहाँ पे तुम्हें अपडेट करना पड़ेगा। एंड दीज आर द प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक फीचर्स। तो आफ्टर लाइक यू हैव लर्नड एवरीथिंग, यू नीड टू गो हियर एंड यहाँ पे iOS के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे मैक ओएस का पार्ट रहेगा। सो लाइक यहाँ पे तुम्हें यू नीड टू नो अबाउट दीज थिंग्स अ बिट, यहाँ पे कैसे यहाँ पे इनमें कुछ काम होता है। ओके, सो दैट्स द पार्ट, दिस प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक पार्ट। नाउ कम्स द लास्ट पार्ट, दैट इज एक्सपेरिमेंटेशन। सो एक्सपेरिमेंटेशन का तो कोई एंड नहीं रहता, मतलब करते रहो एंड या that's pretty much thing। and उसके बाद you can publish your apps to the app store, play store। so yeah, that's pretty much everything from my end। now you can go for the question answers। yeah, any questions? So can I continue? Yeah, sure। So I was asking about API related, like in TensorFlow, there are application programming interface. There we can find as a hardware API, web API. So is it same for the Flutter case? Regarding TensorFlow, I would say there is already a package in Flutter, I guess TF Live, yeah, TF Lite Flutter, this package. If you go to here, like this is like pretty much, I mean, I won't say this is the perfect app for perfect package for like this thing, but it can pretty much, you can use this for like your ML purpose, this TensorFlow plugin. Like if you want to like use TensorFlow in your apps, you can use this plugin. Are you? Because your Oh, the screen. screen Oh, is not sorry, clear. so sorry. The screen is not. Like, wait a second. Wait a second. Yeah. Yep. This package, this T. If you go to pub.dev and search here for TensorFlow, this one is not, does not work. This one, this TF Lite. I mean, of course, as the light name suggests, it won't be that much heavyweight, but you can pretty much understand that this pretty much like does your work, right? I mean, I guess you can use this package for your TensorFlow stuff. This package, I guess, serves your purpose, and it is Android and iOS compatible. I guess the Windows compatibility is not there yet for this package, but yeah, this is like you can use this package for your TensorFlow like purpose. You can explore here. Yeah. Okay. You used a platform name in the beginning for the online something dot. Can you please repeat the website name again? That's Dartpad. That is not exactly an online Yeah, compiler that. for Flutter. That is for Dart only. Like I told you, na, like whatever code we are writing here, na, this all code is written in Dart. Like you can see main.dart. Like this is like Dart is a language that is used in Flutter. Okay. So this Dartpad, what I told, na, this is basically like a website where you can practice writing your Dart code. Okay। सो दिस थिंग लाइक यहाँ पे देखो एक फॉर लूप चल रहा है यहाँ पे कुछ है, तो लाइक समथिंग यहाँ पे लिख दो। सो या फिर रन दैट। सो बेसिकली दिस इज लाइक अ काइंड ऑफ रन नहीं कर रहा एनीवेज, बट लाइक या सो दिस इज लाइक फॉर रनिंग द डार्ट, आई मीन टेस्टिंग आउट द डार्ट लैंग्वेज। यहाँ पे दिस इज लाइक एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर टेस्टिंग डार्ट। अब देखो यहाँ पे लिखा है बेस्ड ऑन फ्लटर एसडीके, लाइक ऑफ कोर्स लाइक इट काइंड ऑफ implement the way Flutter works, but I won't say exactly ये Flutter का ही है। या यहाँ पे तुम Flutter के भी like widget बना सकते हो। I mean you can implement that। यहाँ पे I guess you can import your I never use this thing, but auto complete नहीं मिलता, but yeah you can I guess import packages also here if you experiment with this thing। okay, मान लो यहाँ पे कुछ तो import कर सकते हो तुम ये। if you want you can use this as a like an online compiler, but I would suggest this is not a proper way for this thing। it is like not at all useful, तुम्हारे किसी काम का नहीं आने वाला if you use here। so that I guess pretty much answers your question। go ahead। डार्ट लैंग्वेज क्या पाइथन के साथ सिमिलरली है क्या मतलब?
नो 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 नो, पाइथन के साथ कोई सिमिलरिटी यहाँ पे मिलने नहीं वाला। तुम्हें जावा या फिर जावास्क्रिप्ट से सिमिलरिटी मिल सकता है अगर तुम यहाँ पे कोड देखो। यहाँ पे देखो लाइक जैसे जावा में लिखते हैं क्लास, एक्सटेंड्स, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये सब यहाँ पे यूज होता है। देखो मतलब आई गेस समझ आ रहा होगा ना। देखो ऐसे मेथड होते हैं। या इन पाइथन जैसे तो लग नहीं रहा ना ये। पाइथन का वैसे मतलब कह सकते हो, मतलब देखो एट द एंड ऑफ द डे ये ऊप्स है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यहाँ पे तुम यूज कर रहे हो। सो टेक्निकली ये देखो जावा ऐसा ही लगेगा। मतलब जैसे कंस्ट्रक्ट, जैसे अगर मतलब यहाँ पे क्लास बनाना चाहो तो क्लास होगा, प्रॉपर क्लास बनेगा, कंस्ट्रक्टर बनेगा, सब कुछ है यहाँ पे। थोड़ा जावा ऐसा भी लगेगा और जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट का मिक्सचर लगेगा। टाइप स्क्रिप्ट क्यों बोल रहे हो यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे फ्लटर इज बहुत ज्यादा टाइप लेके बहुत चिल्लाता है। मतलब तुम कुछ टाइप में एरर कर दोगे वहां खराब हो जाएगा, कोड नहीं काम करेगा। So yeah, so it kind of implements features from like JavaScript, Java and TypeScript. You can say that. So any more questions again? और एट द एंड लाइक आपने बोला ना लास्ट में कि वो हम लोग ऐप स्टोर में इसमें पब्लिश कर सकते हैं, तो जैसे कि मैंने फ्लटर में कोई प्रोजेक्ट बनाया तो उसके Hmm. बाद डायरेक्टली मुझे वहाँ पे होस्ट करने का, जैसे कि वेब पेज जैसे बनाते हैं हम लोग, उसको पब्लिश करने के लिए डोमेन या फिर तो थोड़ा होस्टिंग ये सा सब देना। ऐप स्टोर में हट गया तुम्हारा आवाज। फ्लटर में ऐप बनाया उसके बाद क्या बोले तुम? जैसे कि वेब पेज बनाने के लिए हम लोग उसको पब्लिक करने के लिए हम लोग को होस्टिंग लेना पड़ता है, डोमेन ये सब करना पड़ता है। तो फ्लटर में ऐप बनाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है कि उसको पब्लिश करने के लिए ये सब कुछ। देखो फ्लटर में बेसिकली देखो, अब तुम मान लो तुम एंड्रॉइड यूजर हो या फिर iOS यूजर हो, कभी बताओ। वो दोनों यूज करते हैं। वो दोनों यूज करते हो ना, राइट, नाइस। सो मान लो तुम यहाँ पे कोई एंड्रॉइड में कुछ यूज कर रहे हो, तो एंड्रॉइड में क्या होता है, एपीके होता है, राइट। एपीके फाइल को तुम रन करते हो, वहां पे एंड्रॉइड में काम करता है। आईओएस में आई गेस डीएमजी या फिर ऐसे कुछ होते हैं फाइल्स, सो जो यूज करते हो लाइक इन केस ऑफ लाइक मैक ओएस में डीएमजी, आई गेस डीएमजी होता है, नॉट यूज्ड आईओएस मच, आई मीन मैक ओएस। सो डीएमजी जो होता है या फिर तो उस टाइप का होता है। तो जैसे एपीके फाइल अगर तुम कोई मान लो यूज कर रहे हो, तो क्या तुम्हें कुछ एपीके के लिए की कुछ होस्टिंग लेना लगता है कि जरूरत पड़ रही है तुम्हें वहां पे? खुद ही आंसर कर, समझ आएगा तुम्हें। प्रैक्टिकली नहीं होता। नहीं नहीं लगता ना, मतलब तुम एपीके फाइल तुम्हें मिल गया, तुम इंस्टॉल कर लिया, राइट। अब पब्लिश की बात जहाँ पे आ रही है फ्लटर में, लाइक लेट सपोज कि तुमने ऐप कंप्लीट कर लिया, ओके। तो कंप्लीट करने के बाद, अच्छा एक सेकंड, बाय द वे आशीष, मैं तुम्हारे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। आई विल कम टू योर क्वेश्चन इन अ व्हाइल। एनीवेज, सो जामिल लाइक कंटिन्यूइंग विद यू। सो जब तुम फ्लटर में कोई ऐप कंप्लीट कर लिया तुम, उसके बाद यू कैन सिंपली लाइक इफ यू वांट नॉट टू पब्लिश योर ऐप एनीवेयर, तुम एपीके भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट द एपीके, यू कैन एक्सपोर्ट द एपीके एज वेल। मतलब वहां से सिंपली फ्लटर ऐप बिल्ड एपीके करोगे, एक मेथड है, सिंपली तुम्हारा एपीके फाइल तुम्हें मिल जाएगा एंड यू कैन यूज दैट एपीके फाइल इन योर एंड्रॉइड डिवाइस। आईओएस का दिक्कत, एक छोटा सा दिक्कत यहाँ पे है कि आई गेस इफ यू हैव यूज एन आईफोन यू नो दैट कि मतलब आईफोन में यू कांट साइड लोड ऐप दैट इजीली। इफ यू हैव अ विंडोज डेस्कटॉप, स्पेशली विंडोज का कोई एनवायरनमेंट में तुम हो, तुम आईओएस मतलब में ऐसा साइड लोड नहीं कर पाओगे इजीली। अगर तुम्हारे पास मैकबुक है देन यू कैन साइड लोड एप्स ऑन आई मीन आईफोन और समथिंग लाइक दैट, बट फॉर दैट केस you don't have that option with that iPhone part. But yeah, Android के लिए you can easily APK बना सकते हो and install on your device simply with Linux and Windows. Windows के लिए तुम .exe फाइल तुम्हें मिल जाएगा, Linux के लिए भी तुम्हें like फाइल मिल जाएंगे, as simple as that. So this part is clear. Now I coming to your part of publishing apps. So regarding the App Store part, I don't own a MacBook, so I can't exactly guide you on that. But yeah, I have released my apps on Play Store, so I can tell you about that. सो बेसिकली यहाँ पे होता यूं है कि जो मैं अभी दिखा रहा था ना कि मतलब दिस एंड्रॉइड फोल्डर, राइट। यहाँ पे तुम्हें आके बेसिकली जो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट है, यहाँ पे तुम्हें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। आई वोंट एक्जैक्टली बी गेटिंग टू द चेंजेस। सो यार प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक, मतलब कुछ मान लो तुम्हारा ऐप अगर इंटरनेट यूज करता है तो यहाँ पे तुम सारे परमिशंस डालोगे। तुम्हारा ऐप का जो नाम है, जैसे ये लिख रखा है, ऑफकोर्स ये नाम ऐसे नाम नहीं रखोगे तुम, प्रॉपर कुछ नाम लिखोगे, तो वो यहाँ पे नेम लिखोगे। या फिर तुम्हारा एप्लीकेशन का रिवर्स जो डोमेन है वो सब यहाँ पे ऐड करोगे ना, तो वो सब यहाँ पे दोगे। देन देयर दिस, अगर तुम थोड़ा बहुत एंड्रॉइड डेवलपमेंट पे फैमिलियर हो तो यू माइट नो दिस थिंग कॉल्ड ग्रेडल फाइल्स। इस ग्रेडल फाइल्स आर लाइक बंडलिंग अप करते हैं तुम्हारे फाइल को। यहाँ पे तुम एसडी के वर्जन लिखोगे, यहाँ पे टारगेट एसडी के वर्जन ये सब डालोगे, एंड उसके बाद यू विल गो विद दिस कमांड कॉल्ड फ्लटर ऐप बिल्ड
तो वहां से तुम्हें क्या मिलेगा, यू विल गेट अ फाइल कॉल्ड aab.aab नाम का एक फाइल तुम्हें मिलेगा यहाँ से, विच इज एन ऐप बंडल। ओके, ये ऐप बंडल जो है ये तुम डायरेक्टली प्ले स्टोर पे रिलीज कर सकते हो। नाउ ऑल्सो इफ यू वांट टू नो द कॉस्ट, प्ले स्टोर में ऐप बिल्डिंग के लिए तुम्हारा अकाउंट के लिए 2,000 रुपया लगता है टिल नाउ फॉर लाइफ टाइम। whereas on if you want to release your app on app store, you need to like first of all तुम्हारे पास MacBook होना चाहिए, secondly you need to have an Xcode as well, I guess I am not use that but I guess Xcode भी चाहिए तुम्हें उसके लिए, you need to have a Apple developer account plus keep your app live on your app store, हर साल $99 लगते हैं। so I guess yeah, you get your answer here. Yeah, thank you for sharing the information. It was very helpful. Thank you. Okay. So Ashish, I getting to your question. Yes, how have you copied tutorial hell? Okay, now coming to your point, like इसको tutorial hell मत बोला करो। देखो, I would say my own case, मैंने web dev जब सीखा था, what I did was I basically simply copied 5 projects. मैंने 5 प्रोजेक्ट पूरे कॉपी किए एकदम A to Z, कि मतलब एक देख देख के कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बस कॉपी किए जा रहा हूँ एंड काम कर रहा है। उसके बाद जब 6th प्रोजेक्ट में मैं आया ना, तो आई वॉज एबल टू लाइक आई मीन यूज दैट थिंग, मतलब समझ आने लगी क्या हो रहा है। सेम इन फ्लटर, जैसे मैं अपना इंस्पिरेशन फ्लटर का बोलूं, सो आई विल गो विद दिस पर्सन लाइक कोडपुर। Like if you go to this channel, this was my inspiration for I mean starting with Flutter. Exactly this video you are seeing na, master Flutter in 8 hours. इस वीडियो में अभी काफी लाइक आई वुड से कि बहुत सारी चीजें अभी एप्लीकेबल नहीं है, बट आई वुड से कि मैंने शुरुआत किया था एकदम इस वीडियो से मेरा, तो उसके बाद से मतलब थोड़ा समझ आने लग गया। फिर द बेस्ट वे टू लाइक स्टार्ट विद दिस थिंग इज ना कि मतलब यू ट्राई टू मेक सम प्रोजेक्ट। मतलब जब भी तुम प्रोजेक्ट शुरू करोगे ना कि मतलब मैं प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, व्हेन दिस थिंग कम्स अप, उसके बाद तुम ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, सो दैट्स द थिंग विद दिस पार्ट। सो ट्यूटोरियल हेल या आई इन द बिगिनिंग आई ऑफ कोर्स कॉपीड, बट उसके बाद आई वाज एबल टू लाइक डू इट माई सेल्फ। 3-4 वीडियो कॉपी करोगे, सो या yeah Jamil, thank you for that thing. If you have any more questions, like you can like reach me out. So yep, any more questions with anyone else? I mean, you can unmute or the chat box. If not, then I guess we come to the end of this session. LinkedIn. Okay, I may Shomojit, I guess I can like share to you and you can share it like in your groups, Yeah, sure. or I'll like share it here only. Wait a second. Yeah, you can directly share on the chat. Wait a second. I'll just put the link over here. Yep, I guess those who need, you can find the link from here. And I guess that's pretty much everything. Thank you for inviting me over. It was like actually my first time interacting in some kind of webinar like this. And thank you, Resource community. And you guys are really doing some great job. Yep. So thank you all. Thank you, Pritanshu Bhaiya. Thank you to the seniors for organizing it. It was really, and I'm telling this from the bottom of my heart, really informative and useful session, So that's it. If you have any queries or issues regarding Flutter, feel free to contact us. So with that being said, I would like to end this meeting. Good night for today. See ya. Till then, peace out. Peace.